गया। उन्होंने केरला को 3-0 से शिकस्त दी और जीत हासिल करके टीम चैंपियनशिप अपने नाम की। और मेरे साथ इस समय जुड़ने वाली है द फॉर्मर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन एंड ऑल्सो अ फॉर्मर इंटरनेशनल शटलर Trupti Murgunde. Trupti, what there was the wonderful matches happened yesterday. Yes, absolutely. I would say, though it was a 3-0 win for Telangana, but a very exciting match. You see the mixed doubles, how it was played, between Sikki Reddy and Sumit Reddy, beating Tressa Jolly and Emma Rajuna, slightly youngster, I would say. And then again in the singles, we saw such an exciting contest between H.S. Pranoy and Sai Pranith. I think Sai Pranith really showed his skills. Both of them have been immensely talented players. And then the women's singles was absolutely Telangana side. I think it was a very good contest, a good display of badminton for all the viewers out here. And let's see how the day starts today. तृप्ति, हम कल कमेंट्री कर रहे थे कल मैचेस की, बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन हमें देखने को मिला, स्पेशली व्हेन वी वर वाचिंग द एचएस प्रणॉय अगेंस्ट साई प्रणीत और दो इंटरनेशनल शटलर्स अगेंस्ट ईच अदर एट द नेशनल चैंपियनशिप. तो हाउ वाज दैट फीलिंग? That exactly. I mean, I would say there are 3-4 of our men's singles who are almost of the same level. They train together. They know each other's game very well. So it is always very exciting to see when they are playing. So it's always, that day, that moment, who's going to be good and is going to take away the match. And it was Telangana versus Kerala. Of course, Telangana the hub for badminton. तो कहीं ना कहीं वो जो dominance है तेलंगाना ने वो कल prove किया. वो dominance दिखाया है इस badminton court पे. Well, yes, I would say to an extent they had a good team. They had a lot of choices, especially in the doubles to, keep changing, keep rotating throughout the tournament. And, we saw like Sikki got in, a day before and she played her role in the mixed doubles as well as in the doubles. So whereas with the Kerala team, also fairly okay. I would say Kerala is known for, you get a lot of doubles players out from Kerala. Unfortunately, they couldn't make it. But nevertheless, I think silver itself is a big achievement for them. 36 national games are back, stronger and higher. और motto है कि celebrating unity through sports. So how do you see this? Very much. I know. I always say sports is the most healthiest way, and everyone should get to it. I wouldn't say that every time you have to be very competitive, but I think as a healthy way, you should get into sports. And Indian sports, I would say, last 7 to 8 years, it's been doing immensely well. And it's giving such a good cheer for the entire nation, the Olympics, the Commonwealth victories, and so many other sports we are evolving. I think it's like a very vibrant, movement going on in India. The tournament is heating up और यहाँ पर गेयर लग गया है 5वां गेयर क्योंकि आज दिन है इंडिविजुअल इवेंट्स का. और आपको बता दें कि इंडिविजुअल इवेंट्स में आज काफ़ी सारे मैचेस लाइंड अप है. राउंड ऑफ 16 is lined up for you. Also the quarter finals will happen in the second half of the day here at the Pandit Deenayal Upadhyay Indoor Stadium. And look at this. और यहाँ पे एक्साइटमेंट जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. कल हमने बहुत एंजॉय किया. आई होप आज भी कुछ ऐसे ही मैचेस देखने को मिले और एक बार नजर डाल लेंगे कि किस तरह से. And we have Malvika Bansod taking on Unnati Huda. नजर आएंगी आपको फर्स्ट मैच में. इंडिविजुअल इवेंट है. शी विल बी अप अगेंस्ट महाराष्ट्र के उन्नति हुडा. उसके अलावा काफ़ी सारे यंग एथलीट्स हैं. ट्रुप्ति, लॉट ऑफ यंग शटलर्स विल बी शोकेसिंग देयर टैलेंट टुडे because अभी राउंड ऑफ 16 है. देन देयर विल बी क्वार्टर फाइनल्स इन द सेकंड हाफ ऑफ द डे. तो हु आर द प्लेयर्स to watch out today? Well, yes, I mean, we are going to see a lot of youngsters, especially in the women's singles. And the first match itself, Malvika Bansod and Unnati Huda. And I'm sure it's Unnati Huda. As we know, she's an emerging junior player. And at the same time, Malvika has been a little seasoned, but at the same time. So that's going to be a very exciting contest. And at the same time, we have another Tasnim Mir, who's another youngster who we are looking forward to. She's just coming out of the juniors now. And that's the exciting matches I'm looking forward to today. आज भी मैचेस कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे. हम आपको एक बार फिर से बता दें कि टीम फाइनल चैंपियनशिप हो चुकी है और तेलंगाना ने जीत हासिल की. उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, केरला ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. लेट्स वॉच कि आज इंडिविजुअल इवेंट्स में क्या कुछ होने वाला है. टेक यू टू द कमेंटेटर्स सुनीता शर्मा एंड एस किशोर. Thank you, Niti. We are all set for the individual events to begin in badminton at the 36 National Games. And on court 1,
The first of the matches coming up is the women's singles between Maharashtra's Malvika Bansod and Unnati Huda. And there you have the chair umpire there, who just conducted the toss, Ashita Johnny. And you have Krishna Veni, two ladies who would be the officials. The service judge is Krishna. And all set for individual events begin. Malvika Bansod versus Unnati Huda. And I'm joined in the comm box by Sunita Sharma. I'm S. Kishore. Good morning, Sunita. And good morning to all viewers. गुड मॉर्निंग किशोर। ये अच्छा मुकाबला होने वाला है किशोर, क्योंकि दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। अगर उन्नति की बात करें, उन्नति मात्र 17 साल की हैं और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने की नेशनल चैंपियनशिप 14 वर्ष की उम्र में जीती थी और खेलो इंडिया की भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और दूसरी तरफ मालविका, उनकी भी जितनी तारीफ करें हम कम है। तो कुल मिलाकर ये मुझे लगता है बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है। और बैडमिंटन इंडिविजुअल इवेंट्स का ये पहला सिंगल्स का मुकाबला है। मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा आकर्षण रहेगा यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों के लिए। And also the fact that Malvika is seeded, is the top seed here, Sunita, that would mean Unnati Huda. There you see the umpire in the chair, and she's from Kerala, Ashita Johnny. And not only in all walks of life, women making rapid strides, be it playing, be it officiating. And we have two officials, both ladies here for this women's singles individual round match. And the service judge is Krishna Veni. This is, of course, Unnati Huda, a youngster who has been making rapid strides, as Sunita mentioned, on the national scene. She's also been doing internationally at the junior level, now making her step towards the senior level. And as far as the lady in the far court goes, Malvika Bansod, she played a thriller of a game, Sunita. We were fortunate to watch that in the team championship when she got the better of the Telangana player after, in fact, she was 4 match points down. From there, she turned the match in favor of her and Maharashtra. It's another matter that Maharashtra went on to lose the semi-final, but Malvika Bansod, excellent play the other day. किशोर, मैंने ये मैच शुरू होने से पहले उन्नति से बात की थी और उनका सपना जो है विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने का है और वो पीवी सिंधु की बहुत बड़ी फैन है, खासतौर से उनकी स्मैशेस की, और उसी को वो चाहती हैं कि वो कॉपी करें। आज देखना ये है कि उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। ये हमारे पिक्चर फ्रेम में मालविका और ये है उन्नति हुडा हरियाणा से। सर्विस उन्नति करेंगी। इवन नंबर्स की सर्विसेज जो होती हैं राइट साइड से की जाती हैं और इसीलिए राइट साइड पर पहुंच गई हैं सर्विस एरिना में उन्नति। और ये है मालविका बंसोड, 21 साल की खिलाड़ी, और ये पहली सर्विस। और अनफोर्स एरर हुई उन्नति से और इसी के साथ खाता खोला है मालविका ने। बाहर दे बैठी। स्कोर 1 मालविका, उन्नति 0। और इस बार भी अनफोर्स एरर। शुरू में गलतियां कर रही हैं और कभी कभी क्या होता है, इस तरह की गलतियां भारी पड़ जाती हैं। तो इस तरह से 2 अंक अर्जित किए, आसान अंक अर्जित किए मालविका ने। तो स्कोर है 2 मालविका, उन्नति 0। Well, once again, this time judging it nicely. You are right, Sunita, because with the rally scoring system which has come into badminton since the last few years, sometimes the game just runs away from you. A couple of unforced errors, and then you find that your opponent is way ahead. Yet Unnati doing well to draw level at 2-all. Once again, Unnati showing her class. That was very delicately placed. Look at that angle at the last moment. Just the turn of the wrist, Sunita. These players are so wristy.
बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैंने उनसे बात की, 1600 ड्रॉप्स की प्रैक्टिस करती हैं एक दिन में। बहुत ही प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं। ये देखिए एक बार फिर कितना खूबसूरत प्रयोग किया था यहाँ रिस्ट का, जैसा कि मेरे साथी कमेंटेटर किशोर ने बताया। और फिलहाल दोनों खिलाड़ी 3-3 की बराबरी पर। So it's been, we haven't seen many long rallies. Of course, this is just the start of the opening game. Malvika Bansod, this time Unnati Huda. And judging it very well, Unnati, we've seen a couple of times at near the sidelines as well as now near the net. Her judgment has been spot on. उन्नति की सर्विस, और इस बार प्लेस करना चाहती थी। ये देखिए किस तरह से अंक मिला यहाँ उन्नति को। ये देखिए डायगोनली प्लेस करना चाहती थी लेकिन नेट में दे बैठी और अंक मिला मालविका को। 4-5, एक अंक का अंतर फिलहाल। शुरुआती क्षण है। Well, once again doing very well there. Unnati Huda, every point she is fighting against her higher ranked opponent. अच्छी एंटिसिपेशन, सराहना करनी होगी उन्नति की। और 2 अंक आगे पहुंची हैं सर्विस उन्नति की। स्कोर 7 उन्नति 4 मालविका। Oh, superbly played, Sunita. Unnati Huda, her defense was what really, she was under attack, but she defended superbly. And when the opportunity came its way, she really had Malvika Bansod in trouble in the forecourt. सर्विस उन्नति की। 8-4 का स्कोर। बाएं हाथ की खिलाड़ी है मालविका। और इस बार देखिए कितना खूबसूरती से कलाई को घुमाया और दाईं तरफ प्लेस किया। फास्ट ड्रॉप। एक बार फिर देखिए उन्नति का हुनर, और यहाँ कोई संभावना नहीं थी इसके रिटर्न की, और एक और अंक अर्जित किया उन्नति ने। Well, this time Malvika Bansod, after quite some time, able to get the length of that return. She was aiming for the baseline. She got it spot on there. But must say that Unnati Huda, we've seen her before. We've heard a lot about her potential. Well, this time once again, look at that. She is making Malvika play, and really near the net also. Her net coverage has been superb, and Malvika making an unforced error there. और इस बार स्लो ड्रॉप। मिड टाइम स्कोर 11-5। अच्छी शुरुआत उन्नति की, जबकि अनुभव की अगर हम बात करें दोनों के पास बराबर का अनुभव है। और हाफ टाइम स्कोर इस समय है उन्नति हुडा 6 अंकों से आगे, उन्नति 11 पर, मालविका बंसोड 5 अंकों पर। So Unnati once again, and we can see
former doubles player, international. That was Akshay Devalkar off your frame. He himself was such an excellent player. He's by the side of Malvika Bansod, whereas Unnati Huda, she is such a promising player. Looks so confident at such a young age, which is really a revelation these days. Of course, we see in all sports, Sunita, that players are so, because they get exposure at such a young age, they look very confident. They carry themselves with a lot of their determination. Unforced error to start off with, and this game, at least as of now, Sunita, it looks it's going the way of the young Unnati Huda. बिल्कुल ठीक कहा आपने किशोर। और ये देखिए किस तरह से 12वां अंक मिला था उन्नति को। और ये अनफोर्स एरर बाहर दे बैठी। काफी दबाव मैं समझती हूँ इस तरह की, जिस तरह की गलतियां कर रही हैं इस समय मालविका, बाएं हाथ की खिलाड़ी। और देखिए बहुत ही अच्छी जजमेंट। स्कोर उन्नति 14, मालविका ने इस सेकंड हाफ में एक भी अंक अर्जित नहीं किया है। And you're right, Sunita, the pressure seems to be on Malvika Bansod, though she did manage to get a point there. An unforced error from Huda. Her intention was all right. She was going for the lines there. But it often happens when you're playing a player who is junior to you, less experienced than you, then the pressure is always on you, because your opponent, the youngster, has got nothing to lose, Sunita, and that's what we're witnessing here. फिलहाल तो स्कोर बोर्ड दिखा रहा है कि एक तरफा मुकाबला है। और इस बार डाउन द लाइन प्लेस किया और एक अंक अर्जित किया। देखना यह है कि कमबैक होता है कि नहीं। ये देखिए बाएं हाथ की खिलाड़ी और किस तरह से स्ट्रेट स्मैश था ये, जंप के साथ अच्छा स्मैश। 15-7 स्कोर। Well, once again, doing well. Malvika trying to stage a comeback, even though there's 7 points separating her from Unnati. But Malvika is a fighter. We saw it in the team championship. She was down and out, one fell. She almost came back from the dead to win a very crucial women's singles match in the semi-finals. Unnati's court coverage is superb, Sunita. बिल्कुल ठीक कहा, बहुत फास्ट है, जल्दी गियर्स बदलती हैं, वेरिएशन देती हैं। और ये देखिए किस तरह से एक अंक अर्जित किया उन्नति ने, और ये दाईं तरफ प्लेस किया। ड्रॉप्स दो तरह के होते हैं बैडमिंटन में, फास्ट एंड स्लो। इस बार फास्ट ड्रॉप था ये। और अनफोर्स एरर साइड लॉबी में दे बैठी और एक अंक मिला मालविका को। अंतर यकीनन कम हुआ है। ये देखिए किस तरह से एक अंक मिला था, ये खुद गलती कर बैठी और बहुत ही अच्छी जजमेंट यहाँ मालविका की। Yet another unforced error. She did everything right until that last shot, Sunita. And what is good to see, even here you would see, she's actually, her court coverage from the center of the court, she's actually dictating terms to her higher ranked opponent. Malvika Bansod is seeded 1 here in the individual events in women's singles. So slowly but surely trying to claw back is Malvika, 11-16. सर्विस मालिक मालविका।
और इस बार गलती कर बैठी, अनफोर्स एरर, मजबूर किया इस गलती करने को। और देखिए अंतर को कम करने में कामयाबी मिली है यहाँ। ये होता है अनुभव। आगे कॉल किया उन्नति को और ये नेट फॉल्ट हुआ। अंतर जैसा कि हम बात कर रहे थे कम हुआ है, मात्र 4 अंकों का अंतर इस समय। उन्नति 16, मालविका 12। Yes, you're right. Experience, there's no substitute for experience. Oh, this time, this is what she's been trying for the last 3 or 4 points. Couple of unforced error, but this time Unnati got it spot on. Such a deceptive player, Unnati Huda. Oh, and this time Malvika, her intention was all right, but execution not quite so. So important point here. Malvika Bansod, the top seed, under some pressure, trailing 12-18. This is Malvika Bansod, the left-hander, receiving serve. This is something Unnati needs to guard against. That was uncalled for, that unforced error. If you could see, she had done well. She was just about slowing down the game, and then she got it completely wrong. बहुत ही अच्छी सुंदर लंबी रैली, मैं समझती हूँ इस गेम की सबसे बड़ी रैली, और अंत हुआ इसका मालविका के फेवर में। ये देखिए गलती करवाई मालविका ने, ये होता है अनुभव। ये देखिए कि नोट नेट के कितने क्लोज ड्रॉप किया था, रिटर्न नहीं कर पाई, और ये होता है अनुभव। जब एक होती है अनफोर्स एरर, एक होती है जब आप गलती करने को मजबूर कर देते हैं, फोर्स एरर। और इसी तरह का इन्विटेशन था। गजब का खेल, बहुत अच्छी रैली। You're right, and Malvika looks so very calm. She's been trailing for most part of this game, but she looks so calm and composed. Maybe there would be pressure on her, but she is someone who's not, her face doesn't exhibit any of those emotions which may be going through her head. Yet another point here. She's slowly but surely staging a comeback here, 15-18. Unnati Huda the youngster needs to just calm herself down. She can stage a comeback here. Malvika Bansod. Very good placement, sir. Excellent placement at the net. सर्विस उन्नति की 19-15, मात्र 2 अंकों की जरूरत इस गेम को जीतने के लिए। सर्विस, और इस बार प्लेस किया, बहुत ही अच्छा निर्णय ये यहाँ पर। इस तरह की गलतियों से, हालांकि उनका कोर्ट के एवरेज बहुत अच्छा है, शानदार है उन्नति का अगर बात करें, लेकिन इस पर गलती हुई। बाईं तरफ कॉल किया और दाहिनी तरफ शटल को प्लेस किया, और अंतर को कम करने में यकीनन यहाँ कामयाबी मिली है। सर्विस मालविका की। Look at that, Malvika now just shifting gears and attacking her opponent. And really she was trailing by around 7 points at one stage. Malvika has done very well to bridge the gap. Just 2 points the difference between the two players. Malvika Bansod. An opportunity for her here, maybe the last of the opportunities.
Oh, she grabs it with both hands. Did very well. That play at the net had Unnati Huda in fact was in a lot of trouble, because as you would see, it was placed so close to the net. That is all Unnati could have done. There's nothing else that she could have done. So it's now 18-19. So really turning out to be such a close opening game. What a good advertisement of badminton, just as a very opening game on court number 1 in the individual events. ये ड्रॉप करना चाहती थी उन्नति, जिनमें कि इनकी महारत है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और ये कांटे का मुकाबला शुरू हुआ। दोनों 19-19 की बराबरी पर। सराहना करनी होगी यहाँ मालविका की, जिस तरह से कमबैक किया है उन्होंने। 5 अंकों का अंतर था, लेकिन इस समय 19-19 की बराबरी पर। बाएं हाथ की अनुभवी खिलाड़ी मालविका, काफी दबाव इस समय उन्नति पर। और इस प्रेशर के चलते मालविका बाहर दे बैठी और अंक मिला उन्नति को। ये देखिए, प्रेशर उन्नति पर है तो मालविका पर भी है। अनफोर्स एरर, इसी की जरूरत थी उन्नति को। और फिलहाल 1 अंक से आगे हैं किशोर उन्नति हुडा। 20-19 स्कोर। Yes, on game point here, Unnati Huda. Can she hold her nerve against the experienced top seed, Malvika Bansod? Well, look at that. Malvika has pumped up. She's totally focused here. Really waited for her opportunity. And when it came, the southpaw had the court well covered. 20 all. What a comeback by the top seed. Unnati Huda, the youngster, did well, but the unforced error she made in between is what has really pegged her back here. Oh, once again, can't really fault Unnati. She wanted Sunita to get that cross court, but sometimes the luck of the net goes your way, sometimes your opponent's way. एडवांटेज मालविका, 21वीं स्कोर। और इस बार अनफोर्स्ड एरर, मैं ये कहूंगी गजब की गलती। इस तरह की गलतियों से बचना चाहिए। बहुत क्लोज थी, ड्रॉप ले सकती थी, लेकिन दबाव के चलते देखिए मालविका ने यहाँ ड्रॉप किया और मालविका का रिटर्न, लेकिन उन्नति नियंत्रण नहीं रख पाई दबाव के चलते। और इस तरह से ये पहला गेम 22-20 से अनुभवी खिलाड़ी मालविका बंसोड ने जीत लिया है। और यहाँ उपस्थित किशोर स्कूल के छात्र छात्राएं, क्या पता इनमें से ही कल को कोई पीवी सिंधु निकले, साइना नेहवाल निकले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ देखने को मिल रहे हैं और यही इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है, यही वजह होती है यहाँ इनवाइट किया जाता है। Wonderful to see school children in their various uniforms, all here present here, and all so happy to be here. Wonderful initiative from the organizers of the 36 national games. Not only in badminton, in all games we have seen school children being brought to witness top class athletes in action. And what better to inspire these children to take to sports, especially at a time when more and more youngsters don't indulge in outdoor activities. This is a wonderful opportunity. Malvika Bansod, you can see in conversation with Akshay Devalkar, the former India international specialist doubles player. Unnati also being given some invaluable advice, and this is a learning experience. And just wanted to say, Sunita, we're talking about Unnati
obviously is an upcoming player, is a junior. But Malvika Bansod also, if you see, she's a youngster only. Only thing, she may be a few years more experience, or she's been a couple of years more on the circuit than Unnati. But both of them, we're just saying relative terms, Malvika is more experienced, but both of them, of many ways, the future of women's singles after the likes of PV Sindhu. Then you have Malvika Bansod, Unnati Huda. There's so many youngsters who are doing well. ये पूरे कोर्ट में खिलाना चाहती थी मालविका को उन्नति, लेकिन शुरू में ही फॉल्ट हुआ और शुरुआती अंक मिला मालविका को। खाता खोला है ये मालविका, 21 वर्षीय खिलाड़ी है मालविका। और इस बार अंक मिला उन्नति को। ये देखिए कितनी खुशी देखी जा सकती है उनके चेहरे पर। ये देखिए किस तरह से ये अंक मिला था, यहाँ गलती करवाई, फास्ट ड्रॉप, रिटर्न नहीं दे पाई और दोनों लड़कियां एक बार फिर मालविका और उन्नति हुडा एक की बराबरी पर। यंग गर्ल्स So really Malvika Bansod showing a class here, and she's now making her opponent move around. And once again, a superb judgment at the baseline. She started out a little shakily, but now she's got full control of her game. Unnati Huda does very well. She needs to stage a comeback here. Remember, it's a must-win game for her. She has to take this match to the decider. This time that overhead cross-court working in her favor. Unnati Huda trailing by a point here, 2-3. मालविका और सर्विस है उन्नति हुडा हरियाणा की। और यहाँ ड्रॉप करना चाहती थी, नेट के करीब बुलाना चाहती थी, लेकिन अनफोर्स एरर, नेट फॉल्ट। और फिलहाल स्कोर है मालविका 4, उन्नति 2। इस बार शायद निर्णय लेने में देर जरूर हुई और अंक भी अर्जित किया। ये देखिए किस तरह से अंक मिला था यहाँ उन्नति को। और ये सही एंटिसिपेशन और नेट फॉल्ट। मालविका 5, उन्नति 3। और अपने दाईं तरफ फास्ट मैच देना चाहती थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, नेट फॉल्ट हुआ और एक अनफोर्स एरर और हुई उन्नति से और स्कोर पहुंचा है 6-3 पर। इस दूसरे गेम में शुरू से ही डोमिनेट करने की कोशिश है और अगर उन्नति कमबैक करना चाहती हैं तो संभल के खेलना होगा। Oh, look at this, Unnati Huda. The fighter in her comes to the fore. She's an ambitious young girl. Sunita mentioned how when she had a conversation with her, she said she wants to follow in the footsteps of her hero, which is of course India's top player, PV Sindhu, whom she idolizes.
The umpire having a quiet word with both of them. Maybe what it happens, the players also get a bit tired. They also try to buy a little time, and that is when the officials step in, Sunita. And very good if youngsters are told what is to be done at a young age to hold them in good stead. Yet another unforced error. What one has seen is, as much one has been impressed by Unnati's game, this is one area she needs to work on, the unforced errors. Oh, this time, look, when she gets it right, she looks, the strokes look so beautifully placed, lovely to watch. सर्विस उन्नति की। एक बार फिर लंबी रैली, लेकिन अंक मिला मालविका को। यहाँ अनुभव काम आता है। पूरे कोर्ट में खिला रही है, देखिए किस तरह से पूरे कोर्ट को कवर किया, और जब देखा उन्नति वहाँ मौजूद नहीं थी, शटल को ठीक वहीं पर प्लेस किया और एक आसान सूझबूझ का अंक अर्जित किया। 4 अंकों का अंतर फिलहाल मालविका बंसोड के खाते में। 9 पर है मालविका और 5 अंक अर्जित किए इस दूसरे गेम में उन्नति हुडा ने। This time Malvika unable to get the length of a return right. This is again, Unnati always tries to move her opponent around, maybe create those difficult angles. But this time she was not in control at all, and yet another unforced error, and that would mean that at the mid-game break it's the Maharashtra girl who is ahead at 11-6. Akshay Devalka. There you see that there is Akshay Devalka, former India double specialist, now a well-known coach who is with Malvika Bansod. Malvika Bansod, her rise has also been really been mercurial, Sunita, because right from one has had the opportunity of seeing her right from her sub-junior days. She was always a very impressive player, and now slowly but surely making the transition to the senior ranks at the international level. There you can see the competition manager there, Rajiv Khanna is there, and 11-6. The second game, and this is a game Sunita Unnati needs to win if she has to remain in contention. फिलहाल सर्विस मालविका की, और शुरू में ही बाहर दे बैठी। ये शॉर्ट सर्विस, क्विक रिटर्न, लेकिन वही गलती। और इस बार मालविका ने पूरे कोर्ट में खिलाया उन्नति को, इधर उधर घुमाया, दाईं तरफ एक बार फिर देखिए किस वेरिएशन से खिलाया और अंत किया अपने पक्ष में। इस अंतर को बढ़ाया। स्कोर पहुंचा है मालविका 13, उन्नति 6। ये दूसरा गेम चल रहा है। पहला गेम मालविका ने कड़े संघर्ष के बाद जीता था। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की उन्नति ने।
और ये क्रॉस कोर्ट स्मैश और अंक अर्जित किया। फिलहाल 7-13 स्कोर। लंबी रैली, क्रॉस कोर्ट प्लेसिंग, कोई जवाब नहीं था वहां मालविका के पास। इस तरह के वेरिएशन की जरूरत है खेल में इस समय। देखिए किस तरह से उन्नति ने एक पावरफुल शॉट दिया जिसके जरिए एक अंक अर्जित किया। इस अंतर को कम करने में कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन बने रहना है तो इस गेम को जीतना बहुत जरूरी है। इस समय पहला गेम मालविका जीत चुकी हैं, दूसरे गेम में भी 5 अंकों से आगे है मालविका। Oh, got it spot on there. Unnati was caught by surprise, but that was as perfect a placement on the baseline as one could hope for. The game now slowly drifting away from the young Unnati Huda. Little late over there. Oh, this time every now and then she comes up with a shot which really would do any international player proud. And a couple of points on the trot. Does Unnati have it in her to stage a comeback here? That was also superb cross-court placement. दूसरा गेम मालविका और उन्नति के बीच 10-15 स्कोर। और इस बार नेट के करीब पहुंची मालविका और स्मैश किया। ये देखिए किस खूबसूरती से, ये देखिए नेट के करीब पहुंची और जंप के साथ, छोटे जंप के साथ नेट क्रॉस कराया और एक आसान अंक, सूझबूझ का अंक अर्जित किया। लेकिन इस बार प्रेशर के चलते एक आसान नेट क्रॉस जस्ट ड्राइव किया था। ये देखिए नेट क्रॉस करवाया, वहां नहीं पहुंच पाई उन्नति। इस तरह की गलतियां मैं समझती हूँ, काफी दबाव में खेल रही हैं इस तरह इस समय उन्नति। Once again, this is what happens when things are not going your way. She wanted to go for the lines, her intention was all right. Execution going a bit awry there. And every point that Unnati Huda gets from here on, she looks a bit flustered. It's quite obvious. Because if you see in the first game, this time somehow managing to hang in there and being rewarded for the perseverance. She defended well, good defensive backhand placement there. May not have been fully in control, but it went her way. As I was saying, Sunita, Malvika Bansod was in a similar position in the first game, but the calmness that she exhibited enabled her to claw back. Can young Unnati Huda be able to replicate what Malvika Bansod did in the first game? Let's wait and watch. डेफिनेटली अंतर को जरूर कम किया है और कम बैक हो भी सकता है किसी भी गेम में। अनुभव है दोनों खिलाड़ियों के पास। फिलहाल सर्विस उन्नति की।
एक बार फिर लंबी रैली और अंक मिला अंत में डाउन द लाइन स्मैश के जरिए मालविका को। ये देखिए कितनी लंबी रैली थी ये, और डाउन द लाइन स्मैश था, कोई जवाब नहीं था वहां, और अंतर को बढ़ाया। धीरे धीरे जीत के करीब पहुंच रही हैं मालविका। मात्र 3 पॉइंट्स की जरूरत, 3 अंकों की जरूरत इस गेम को जीतने के लिए, इस मैच को जीतने के लिए। 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत ये पहला मुकाबला चल रहा है इंडिविजुअल इवेंट्स के अंतर्गत। स्कोर मालविका 18, उन्नति हुडा 13, जबकि पहला गेम 22-20 से जीता था मालविका ने। Yet another point, and she is just running away with it now, Malvika Bansod. Oh, that's a relentless attack from the net by Malvika Bansod, and she's on match point. Malvika Bansod of Maharashtra, the top seed, on match point, and she has got as many as 7 match point opportunities. And that's all over. Malvika Bansod comes from behind to win this, her opening individual women's singles match. The scoreline reading 20-20. The first game was hard fought. It was Malvika who was trailing, but she came back to win that 20-20, and then winning the second one 21-13 to move into round 2 in the women's singles round of 16. The top seed comes through, and this is how it happened. That's the winning point, the match point for Malvika Bansod, who had a tough time in the first game. She was trailing, she was up against it, but she did extremely well to claw back, showed her experience, and the top seed keeping her appointment into the next round, the round of 8. And we got individual events in every discipline coming up, and we will be having women's singles to continue on court number 1. तो इस तरह से ये पहला मुकाबला इंडिविजुअल इवेंट्स के अंतर्गत मालविका बंसोड ने जीत लिया है। कुल मिलाकर इसका स्कोर रहा 22-20 और दूसरे गेम का 21-13। पहला, ये देखिए इस मैच की हाइलाइट्स, कुछ महत्वपूर्ण अंश इस मैच के। उन्नति सफेद रंग में और दूसरी तरफ है मालविका। ये देखिए किस तरह से पूरे कोर्ट में खिलाती हैं, और इस तरह इस पाई प्लेसमेंट के जरिए एक अंक मिला था यहाँ उन्नति को। उन्नति जैसा नाम वैसा काम, अच्छा प्रदर्शन रहा आज उन्नति का। ये देखिए एक बार फिर बाएं हाथ की खिलाड़ी है मालविका ने शॉर्ट सर्विस लाइन पर ड्रॉप किया। Sunita, this is where Malvika started a comeback, because she was at that time, if I'm not mistaken, trailing at 9-16 or so, and she came back strongly to win not only that hard-fought opening game, but win the match as well. There you, it's such a wonderful sight, Sunita. स्कूल की छात्राएं और ये कुछ छात्र जो यहाँ मौजूद हैं सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में, जहाँ 36वीं राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत बैडमिंटन प्रतियोगिताएं चल रही हैं, और आज इंडिविजुअल इवेंट्स का पहला दिन है। और इससे पहला मुकाबला जो आज खेला गया था, जिसमें कि अच्छा खेल देखने को इन बच्चों को यकीनन मिला होगा, वो था मालविका और उन्नति के बीच। ये देखिए
स्कूल के छात्र। जाहिर है यहीं से इन्हें प्रोत्साहन मिलता है और एक अच्छी शुरुआत का कई बार ये जरिया भी बनते हैं इस तरह के खेल। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं, स्कूल के लड़के लड़कियां। और किशोर देखो, इंतजार करते हैं कि कब हम मॉनिटर पे दिखाई दे, कब हम टीवी पे दिखाई दें और अपना हाथ ऊपर करें, विक्ट्री का साइन बनाएं, किस तरह से अपने खुशी का इजहार करते हैं। और अब ये दूसरा मुकाबला खेला जाना है उत्तर प्रदेश की आदिति भट्ट और गुजरात की ऐशानी तिवारी के बीच। Yes, the second of the women's singles coming up. This would have Aditi Bhatt of Uttarakhand up against Aishani Tiwari of Gujarat. And you have in the chair the umpire there conducting the toss. That's Krishna Veni. And the service judge for this match would be Gaurav Chauhan. So you have the local girl here, Aishani Tiwari. And she is taking on Aditi Bhatt of Uttarakhand. The round of 16 women's singles second match of the day. The first match saw Malvika Bansod coming through, even though she had a few jitters in that opening game against the young Unnati Huda. Malvika kept a composure to win that 22-20 and 21-13. That's how the scoreline read in favor of Malvika Bansod of Maharashtra, the top seed. Here we have two unseeded players up against each other. You got Aditi Bhatt in the far court representing Uttarakhand and Aishani Tiwari of Gujarat in the near court. Everything to play for, and really the players, this is the stage for them, the national games. We did have quite a few international players playing in the team championships, but not many, I would say, in the individual events. One of the reasons, Sunita, is also because players who are playing internationally hardly get an opportunity to play in the ranking tournaments at home, and so that is why maybe the national ranking doesn't quite permit them to play in the national games. But at the same time, it's an opportunity, it's a wonderful opportunity for youngsters to register their presence on the national scene. Opportunity for them to exhibit their potential. And all in all, the stage, the 36 national games organized by the Gujarat Sports Authority in collaboration with the Indian Olympic Association. The organizers have done an excellent job of really putting things in place. Everything is in place. All comforts of the players have been looked after, and it's really celebrating, through sports. It's such a wonderful moment that we are witnessing here. And the singles game about to get underway between, in fact, having just got underway, and the first point there for Gujarat.
The local girl up against a slightly more experienced Aditi Bhatt from Uttarakhand. And it is when you are taken to the baseline, you are found in difficult situations. Yet another unforced error. These are not going to help Aishani. लिफ्ट किया था उसके बाद बैकहैंड का रिटर्न, लेकिन अशानी पर प्रेशर इस समय डोमिनेट कर रही हैं। इस रैली के दौरान भी उन्होंने डोमिनेट किया था अदिति भट्ट ने। 17-11 एक और पॉइंट अदिति के लिए। थोड़े अनफोर्स्ड एरर्स जो हैं ऐशानी तिवारी की तरफ से। 18-11 7 पॉइंट्स लीड टू अदिति भट्ट। और किशोर, आपने जिक्र किया उत्तराखंड से आती हैं अदिति भट्ट, और रिसेंटली हमें भूलना नहीं चाहिए एक बड़ा नाम उभर कर आया है उत्तराखंड से, बॉय फ्रॉम अल्मोड़ा, लक्ष्य सेन। और अब जो इंडिया का जो मैप है, ओनली 1 पॉइंट। ये बात हम आगे ज़रूर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्कस राइट नाउ बिकॉज दीज बैडमिंटन यंगस्टर्स आर स्ट्रगलिंग हेयर एट सूरत। सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए जीतने के लिए। Well, that's it. The opening game to Aditi Bhatt of Uttarakhand. Aishani Tiwari did have her moments, but overall, it was a game dominated by Aditi Bhatt of Uttarakhand, winning very comfortably that opening game, 21-11. शानदार विनर लगाया उन्होंने और 21-11 के स्कोर के साथ ये पहला सेट जीत लिया है अदिति भट्ट ने। शुरुआत में ही लीड हासिल की थी, उस लीड को कंटिन्यूसली मेंटेन किया। और रैली स्पोर्ट्स में ये कहा जाता है कि जितना ज़रूरी है लीड हासिल करना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि उस लीड को मेंटेन करना, उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। और सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में इस समय ये मुकाबले चलते हुए राउंड ऑफ 16 है और आज डे 1 है इंडिविजुअल इवेंट्स का, जबकि बैडमिंटन का आज है डे 4। और हम इससे कुछ देर पहले बात कर रहे थे लक्ष्य सेन की कि एक बड़ा नाम उभर कर आया है उत्तराखंड से। और जैसे पहले डोमिनेंस था इंडिया में, हैदराबाद का, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो काफ़ी डोमिनेट करते रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड से लक्ष्य सेन के आते ही एक नई हवा चली है। एंड नाउ यू लुक एट अदिति भट्ट। Niti, that's what you've been someone into sports. You would know that role models is what youngsters look up to. And when you have someone like Lakshya Sen, who has done so well in such a short span of time at the international stage, Commonwealth Games gold medal, integral part of India's historic Thomas Cup triumph. And what more could one ask for? And his brother also was a very good player, his elder brother, but Lakshya is the one who has gone on to make a name on the international stage. A lot of credit goes to his father, who was his initial coach, and now of course he trains at the Prakash Padukone Badminton Academy in Bangalore. But these are stories, these are inspiring stories, Niti. सेकेंड सेट की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। पहला सेट 21-11 से अदिति भट्ट ने जीत लिया है और ये पहला पॉइंट इस सेकेंड सेट का भी अदिति के नाम। ओपोनेंट के कोर्ट को किस तरह से यूज करना है ये अदिति पूरी तरह से जानती हैं। If you see what Aditi Bhatt is very successfully doing is she's pushing her opponent to the baseline, continuously attacking her, and what that gives her an opening in the forecourt as well. वहाँ स्मार्ट प्ले और एक टैक्टिकल प्ले की कोशिश थी, कोशिश अच्छी थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली है अदिति को दिस टाइम। और ये पॉइंट ऐशानी के लिए 2-2 की बराबरी, सेकंड सेट इस मुकाबले का। So an opportunity, the first time that what that unforced error has done is
Aishani into the lead. In fact, drawing level, beg your pardon, at 2-all. Or in fact, in fact, it was a scoreboard which had shown it erroneously. I was correct, 3-2. So once again, Aditi Bhatt comes into her road. She did prolong that rally and was just waiting for that opening. The moment it presented itself, what a fine placement cross court. What a shot this time, Aditi, but lovely shot, wonderful shot वहां पर लगाया उन्होंने. और उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने इस शॉट को लगाने के लिए जो अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, वो काबिले तारीफ है. उन्होंने अपने लिए ओपनिंग बनाई, वो दबाव बनाती रहीं लगातार आयशा इन्हीं के ऊपर, और फाइनली जैसे ही मौका मिला उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया. चोटिल होने के चांसेस वहाँ हो सकते थे. बैलेंस बनाए रखा है. बॉडी का मोमेंटम जो है जब आपका आगे की तरफ होता है तो बॉडी को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, और इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं द काइंड ऑफ स्किल्स दीज यंग एथलीट्स हैव हियर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ देयर बॉडी. You're right, Neeti. Amazing fitness levels that today's athletes have. Really, the amount of sacrifices they make, be it in their nutrition or be it in the fitness regime they follow. Oh, this time she had everything going for her except the execution at the last moment, going a bit awry. बैलेंस के साथ रिकवरी ज़रूरी है प्रीवियस एक्शन से, और सिर्फ अब 1 पॉइंट का डिफरेंस है. 5-4 का स्कोर, सेकंड सेट इस समय इस मुकाबले का. What one has seen is Aditi is continuously attacking the backhand forecourt of her opponent, and she's got quite a few points over there. It's one of the most difficult shots to retrieve. किशोर, आपने अभी मेंशन किया कि वो बैकहैंड पे किस तरह से प्रेशर बना रही हैं, चाहे वो लेफ्ट पे हो चाहे वो राइट पे हो. नॉट ओनली बैकहैंड बट डीप बैकहैंड, वो कोई चांस नहीं छोड़ रही है इस समय आशानी के लिए. अटैक बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा है आशानी को. Yet another example how she has been dominating in the second game. As you mentioned, Neeti, she's not giving an opportunity, even an iota of an opportunity for Aishani to shift the momentum. ये एक टैक्टिकल मूव था लेकिन कन्वर्जन नहीं हुआ है. क्रॉस कोर्ट प्लेस करना चाहती थी, हाफ रैकेट का इस्तेमाल किया लेकिन पॉइंट नहीं. आउट सर्विस, कम से कम सर्विस में तो ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और जब रैली स्पोर्ट्स की बात होती है तो सर्विस इज ऑलवेज एन एडवांटेज. द फर्स्ट अटैक ऑन ओपोनेंट्स, तो ऐसे तोहफे जो हैं आप विपक्षी को ना दीजिए ऐसी क्रूशियल सिचुएशन में. So Aishani having her opportunities, but then like the last time around, missing out on a serve. Oh, this time it's happened the second time for Aditi, but she's not quite been able to get that the height, or rather get the shuttle at the right height to execute that shot. टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किशोर. टाइमिंग, सही टाइम पर सही एक्शन को एग्जीक्यूट करना, और अदिति ने पिछले 2 पॉइंट में सेम मिस्टेक की है सेम पोजीशन में. दिस शोज कि वो उस प्ले से कम बैक करना चाहती हैं, और शी इज ट्राइंग टू यूटिलाइज दैट साइड ऑफ कोर्ट
लेकिन वहां पर अब तक उनको कामयाबी नहीं मिली है। और साइड लाइन से यहाँ पर आउट है, लास्ट मिनट तक वेट किया। गुड जजमेंट फ्रॉम आदिति भट्ट। 10-8 की एडवांटेज। 3 अटेम्प्ट सेम डायरेक्शन में है और तीनों अटेम्प्ट्स में उन्हें कन्वर्जन नहीं मिला है। अभी भी वो उस विनर की कोशिश कर रही है जो कोर्ट के उस साइड में लगा पाए। Oh, look at that, the luck of the net court going the way of Aishani. That was a real fortuitous point, and she's bridging the gap, serving at 9-10. Good fight back, I must say, Aishani. So it's Aishani who goes into the mid-game break, quite against the run of play at 11-10. In the second game after losing the opening game 11-21. कोच के एक्सप्रेशन से साफ बताते हैं कि वो ऐशानी को बोल रहे होंगे कि फुल कोर्ट का इस्तेमाल करो, ओपोनेंट कोर्ट को यूटिलाइज करो, डायरेक्शंस चेंज करो, रेंज ऑफ मोशंस का यूटिलाइजेशन करो, ताकि आपको अदिति भट्ट को थकाने का भी साथ साथ मौका मिले, क्योंकि शी हैज ऑलरेडी वन द फर्स्ट सेट ऑफ दिस गेम 21-11 से। और ये पहला मौका है ऐशानी के पास कि उनको लीड मिली है 11-10 से, तो इस लीड को बरकरार रखना होगा, क्योंकि डू और डाई सिचुएशन है। राउंड ऑफ 16 का मुकाबला है और ये सेट जीतेंगी तभी ये मुकाबला डिसाइडिंग सेट में जाएगा। वहीं अदिति भट्ट इस समय थोड़ा सा प्रेशर, बॉडी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो गई है। सेकेंड सेट के इनिशियल स्टार्ट में देखिए किस तरह से वो डोमिनेट कर रही थी और वैरायटी ऑफ स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन जो मिडिल फेज है इस सेट का, अब लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल जो है करती नजर आ रही हैं अदिति भट्ट। Well, this is maybe just the opening that Aditi requires. She needs to regroup, and that mid-game grip would have given her an opportunity to just strategize. A coach having a word with her. All these minor things matter a lot. Aditi, her intention was to prolong the rally, but finally making an unforced error there. And Aishani, once again, doing well, hanging in there, returning everything that Aditi threw at her in that rally. प्रेशर बिल्ड हुआ है इस समय अदिति भट्ट के ऊपर। 13-11 का स्कोर, 2 पॉइंट के एडवांटेज इस समय ऐशानी तिवारी के पास। ऐशानी तिवारी गुजरात से हैं, अपने होम ग्राउंड पर इस समय है और इसका पूरा एडवांटेज उन्हें उठाना ही चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी है जीत हासिल करने की और ऐसे अनफोर्स्ड एरर्स को कंट्रोल करना होगा। ऐसी गलतियां जो हैं काफ़ी बड़ा नुकसान आपको पहुंचा सकती हैं। बैकहैंड पे रिटर्न की कोशिश की थी, काफ़ी वीक, काफ़ी लीनियंट रिटर्न था। अदिति भट्ट के खिलाफ ये लीड गंवाना, ये बड़ा नुकसान हो सकता है ऐशानी के लिए। उन्हें लीड अगर बनानी है तो उसको मेंटेन भी करना ज़रूरी है। Well, Aditi Bhatt also somehow seems to, the momentum that was with her has shifted, and you're right, someone like Aishani, when you have your opponent in a spot of bother, you need to nail your opponent.
created the opening wonderfully. Now Aditi, but once again coming into her own. That is how she needs to continue to play. Creating the opening and finishing it beautifully. एक जबरदस्त स्किल वहां पे देखने को मिला है अदिति भट्ट की ओर से। 14 ऑल का स्कोर। डाउन द लाइन हाफ स्मैश, उन्होंने भी अपनी स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल नहीं किया है और वो कोशिश कर रही हैं कि टैक्टिकल प्ले, एक स्मार्ट प्ले करें, क्योंकि वो ऐशानी को कोई मौका नहीं देना चाहती हैं। 15-14, एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट है। ट्वेंटी 11 से पहला सेट उन्होंने जीता है और इस समय एक पॉइंट से एडवांटेज पे। Oh, this time she did want to a placement, such a marginal thing, you know. The shuttle just dropping on the line and just going out. One of the better rallies, Neeti, but then it's Aditi Bhatt who makes a mistake at the end there. एक काफ़ी लंबी रैली थी और रैली में लगातार काफ़ी शॉट्स और स्ट्रोक्स एक्सचेंज होते रहे, लेकिन इवेंचुअली जो है इस रैली का पॉइंट मिला है ऐशानी तिवारी को। 16-15 का स्कोर। किशोर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इस रैली के दौरान कि ऐशानी तिवारी ने लगातार डोमिनेट किया इस रैली को और उन्होंने पूरी तरह से अदिति को नचाया है। उन्होंने हर तरीके के स्ट्रोक्स यूज़ किए, हर तरीके के शॉट्स लगाए और उनके कोर्ट को यूज़ किया है। ये साफ दिखाता है कि वो थोड़ा सा पिकअप कर रही हैं। अब मुश्किलें थोड़ी सी नज़र आने लगी हैं अदिति के चेहरे में। Well, yes, it well could be the commentator's curse coming there, coming into play. Every time you appreciate the efforts of a player, just the opposite happens. But that was again on the line. So this is a ding-dong battle, very difficult to predict as to who will win the second game. Slowly, steadily, लेकिन ऐशानी तिवारी coming back into the game. 17 all. एक अच्छा शॉट था लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में कमी हुई, शटल थोड़ा शॉर्ट पड़ गया और 18-17 इस समय एक पॉइंट के एडवांटेज और आदिति सर्व पे। Oh, very good return of serve that was actually by Aishani Tiwari, which actually induced that error. 18 all. This time also her intention was to draw Aditi to the... Now both the players, this is pressure, Neeti. Both the players making errors because it knows how important it is to the second game. For Aishani, of course, it's a must-win game. Aditi just at the right time, surging ahead. She's on match point here. Can she hold her nerve and win the second game and the match? और यहाँ पे भेंट में दे दिया उन्होंने ये आखिरी पॉइंट इस मैच का। 21-18 के साथ अदिति भट्ट ने इस सेकंड सेट को भी जीत लिया है। 2-0 से स्ट्रेट 2 सेट्स में उन्होंने जीत हासिल की। इस राउंड ऑफ 16 में उत्तराखंड की अदिति भट्ट ने हराया है गुजरात की ऐशानी तिवारी को स्ट्रेट सेट्स में 20
111 से पहला सेट जीता और उसके बाद दूसरे सेट में स्ट्रगल किया, बैटल किया, फाइट किया और काफ़ी नेक टू नेक मुकाबला देखने को मिला। उसके बावजूद 21-18 के साथ जीत हासिल की है अदिति भट्ट ने। क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और इससे पिछले मुकाबले में मालविका बंसोड ने जो है मुकाबला जीत लिया था और अपनी टॉप 8 में जगह बनाई और इस दूसरे मुकाबले में अदिति भट्ट ने जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल्स में अपना स्थान पक्का कर लिया है। 21-11 और 21-18 के साथ शिकस्त दी ऐशानी तिवारी को। Yes, that's Aditi Bhatt. She had her moments of anxiety in that second game, but she came through very well. Some of the highlights of what's been a really, that's the point. That's which won it for Aditi Bhatt of Uttarakhand, winning 21-11, 21-18. Right through this tournament, Niti, we had school children in large numbers coming and witnessing the action. And it's such a wonderful moment to savor for every one of us, because this is the best opportunity for them also to watch some top-class players, maybe get inspired, and who knows, maybe the next stars of badminton may come from one of these children out over here. और बिल्कुल गेम का मकसद है कि राइज, रोअर एंड रिजॉइस और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन स्कूल के बच्चों को मौका मिला है नेशनल चैंपियंस को इतनी क्लोजली देखने का। एक नज़र डालेंगे हाइलाइट्स पे कि किस तरह से ये मुकाबला रहा है और जीत हासिल की है अदिति भट्ट ने। उन्होंने सीधा स्ट्रेट गेम्स में जीत हासिल की। पहले सेट में ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं किया, आसानी से उन्होंने हराया ऐशानी तिवारी को। लगातार दबाव बनाती रही, प्रेशर बिल्ड करती रही और विपक्षी के जो कमियां हैं उनको किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ बनाना है वो उन्होंने दिखाया, प्रूफ किया, एक एग्जाम्पल सेट किया। वहीं दूसरे सेट में उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, थोड़ी सी जद्दोजहद देखने को मिली दोनों ही खिलाड़ियों के बीच। 18-18 की बराबरी पे थोड़ा मुश्किल था कि कौन जीतेगा, लेकिन आखिरकार जीत हासिल की उत्तराखंड की अदिति भट्ट ने। यहाँ पर आज के दिन के इस राउंड ऑफ 16 के तीसरे मुकाबले की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये मुकाबला है कावी प्रिया और तस्नीम के बीच में। गुजरात की तस्नीम पिछले कुछ समय में उभरती हुई खिलाड़ी हैं और देखना होगा कि वो इस मुकाबले में किस तरह से नजर आएंगी। आप देख रहे हैं 36 नेशनल गेम्स का बैडमिंटन इवेंट लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन डीडी स्पोर्ट्स। और नेशनल गेम्स की शुरुआत हुई 29 सितंबर को और 12 अक्टूबर तक के गेम्स खेले जाएंगे। इस समय सर्विसेज की टीम जो है वो ओवरऑल मेडल्स टैली में टॉप पर चल रही है। नेशनल गेम्स के दूसरे दिन की समाप्ति तक हरियाणा जो है लीड पर थी मेडल्स टैली में, लेकिन आज कल शाम तक जो मेडल्स टैली अपडेट हुई इसमें सर्विसेज जो है नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गई है। सबको इंतजार होगा कि आज के दिन की समाप्ति के बाद कौन सी टीम टॉप पर नजर आएगी, क्या वो सर्विसेज होगी, हरियाणा होगी, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी कम है गोल्ड मेडल्स का। और जो पार्टिसिपेशन है आज सभी स्पोर्ट्स में यानी 36 स्पोर्ट्स में जो 7000 एथलीट्स यहाँ पर अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं गुजरात गेम्स में। इंतज़ार करेंगे कि आज के दिन की समाप्ति के बाद कौन सी टीम जो है टॉप पोजीशन पे फिनिश करे, क्योंकि ये जो कारवा है किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट का जो जर्नी है वो चलती है सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए और मेडल्स टैली पे फिनिश करने के लिए, टॉप पोजीशन बनाए रखने के लिए। गुजरात के सूरत शहर में हम इस समय हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम जहां पर बैडमिंटन इवेंट आपके लिए लाइव चल रहे हैं। आज काफ़ी सारे इवेंट्स हैं और फिलहाल हम कोर्ट नंबर 1 पे हैं जहां पे 2 मुकाबले ऑलरेडी हो चुके हैं और तीसरा मुकाबला शुरू होने वाला है विमेन सिंगल्स का। मालविका बंसोड defeated Unnati Huda from Haryana with 22-20 and 20-13 in the first match of the day. उसके बाद अदिति भट्ट ने 21-11 और 21-18 से ऐशानी तिवारी को हराया
और क्वार्टर फाइनल में अब आदिति भट्ट का सामना होगा अश्मिता चलीहा से। कवि प्रिया और तस्नीम इस समय कोर्ट पर हैं। मुकाबले की शुरुआत का इंतजार। और कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा चेंज है। फॉर्मर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन तृप्ति मुरगुंडे विल बी जॉइनिंग सुनीता शर्मा फॉर कमिंग अप एक्शन। And here we can see Kavi Priya having a good start in the first game. Tasnim wasn't ready. और ये अच्छी शुरुआत हुई तस्नीम की, जो कि जूनियर खिलाड़ी हैं। शुरू से ही जाहिर है कांटे का मुकाबला दिखाने को। एक अच्छा स्तर का मैच है ये। बहुत उम्मीदें हैं तस्नीम से। ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं और लोकल भी हैं। Definitely, she's be the local favorite, playing for Gujarat. Tasnim Mir, very talented player, an upcoming junior. We have a lot of expectations from Tasnim in the coming years. Just getting herself developed in the senior group now. स्कोर कवि प्रिया 4, तस्नीम 3। और ये देखिए किस तरह से अंक अर्जित किया था। सर्विस फिलहाल कवि प्रिया की। लॉन्ग सर्व और अनफोर्स एरर स्वयं स्वीकार किया। एक अच्छे खिलाड़ी की ये खूबी होती है। Yes, definitely we are yet to see some good rallies coming up in this game. आपने कहा और अपेक्षाकृत लंबी रैली हमने देखी यहाँ पर। हालांकि इस रैली के माध्यम से मैं कहूँगी बहुत ही स्कोरबोर्ड जैसा कि स्थिति में होता है 5-5 की बराबरी पर अच्छा गेम देखने को मिल रहा है। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि प्लेयर्स का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अच्छा रिस्ट वर्क, गजब का वेरिएशन। कवि प्रिया 6, तस्नीम 4। फिलहाल सर्विस कवि प्रिया की। नीले रंग में कवि प्रिया। लॉन्ग सर्व, इस बार अनफोर्स एरर हुई और एक आसान अंक मिला और दोनों 6-6 की बराबरी पर। Very well placed by Tasnim. She was ready for that shot. You can see she went clearly under the shuttle. And last moment, she played that overhead cross-court drop. और इस बार कवि प्रिया गलती कर बैठी। तस्नीम को अंक मिला। ये देखिए किस तरह से अंक अर्जित किया तस्नीम ने। 8वां अंक अर्जित किया था यहाँ पर।
अनफोर्स एरर, नेट में खिला बैठी और थोड़ा सा यहाँ पर संभल के खेलना होगा। और इस बार फिर दबाव के चलते एक और अंक मिला। Now we can see Tasnim a bit more in control, playing all her strokes. जो घोषणाएं हैं वो कर सकते हैं। देवेंद्र हमारे सहयोगी लगा Well placed, slightly deception at the net play. Good positioning, I would say. Once again, Tasnim keeping that control, putting that pressure on Kavi Priya. With this, Tasnim keeping the lead in the first half of the first game with 11-6. कंफर्टेबल लीड पे 5 अंकों से आगे हैं हाफ टाइम स्कोर पर। तस्नीम मीर प्रॉमिसिंग खिलाड़ी है, अच्छा भविष्य है बैडमिंटन में, महसाना से हैं और ये सर्विस तस्नीम मीर की रहेगी। नीले रंग में है तस्नीम और कवि प्रिया है संतरी रंग में। तस्नीम यहाँ की गुजरात की खिलाड़ी हैं। सर्विस देखिए तस्नीम, लॉन्ग सर्व और इस बार अच्छा रिस्ट वर्क। Yes, and you can see that the Kavi Priya's shot, that half smash which she played, was so crisp and very, very accurately placed. तो उन्होंने देख लिया था कि उनकी दाईं तरफ जगह खाली है, उसके लिए तैयार नहीं है, तो ठीक वहीं पर उन्होंने बहुत अच्छी जजमेंट ली, जैसा कि आपने का निर्णय लिया और वहीं पर हाफ स्मैश किया और एक आसान अंक लिया। कुल मिलाकर वन साइडेड मैच लग रहा है ये। तस्नीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अंतर बढ़ रहा है। ये देखिए बॉडी लैंग्वेज कवि प्रिया की, काफी दबाव है इनके चेहरे पर। और इस बार Well, once again, Tasnim getting those body line smashes. Kavi Priya needs to be a little more alert. तृप्ति, बॉडी लाइन स्मैशेस के लिए एक खिलाड़ी का डिफेंस होना बहुत अच्छा ज़रूरी है और काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, इसमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। Yes, क्योंकि you know the reflexes here are very, very important, and it is it's a much quicker shot, so we have to slightly bend down and be ready for those body line smashes. इंडिविजुअल इवेंट का ये महिला वर्ग का मुकाबला और इस बार क्विक रिटर्न, देखिए कितनी शानदार रिटर्न किया, कोई तैयारी नहीं थी वहां कवि प्रिया की और वही अंदाज इस बार कवि प्रिया का। Well, Kavi Priya has been getting those shots very well. She should capitalize on that. इस अंतर को कम करना बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि 15-10 का स्कोर है। तस्नीम मीर काफ़ी अनुभवी है, 6 अंकों से आगे फिलहाल सर्विस तस्नीम मीर की। सर्व एक बार फिर ठीक उसी अंदाज में बॉडी पर स्मैश किया, डिफेंस कठिन था वहां।
और 17 पर पहुंची है तस्नीम। लगातार 2 स्मैश, बहुत ही अच्छी प्लेसिंग। Very rightly, Kavi Priya is getting the hold of that side. और इस पर प्लेस किया। I think that was a good movement from Tasnim. Placing that smash down the line, but unfortunately was unable to execute well. कवि प्रिया धीरे धीरे मोमेंटम बना है और अंतर को कम करने में कामयाबी मिली है। 13-17 पर ये देखिए किस तरह से 13वां अंक अर्जित किया था। अनफोर्स एरर तस्नीम की। 17-13 फिलहाल सर्विस कवि प्रिया की। 3 अंकों का अंतर फिलहाल। अच्छा वेरिएशन, तस्नीम मीर की सराहना करनी होगी यहाँ। बाईं तरफ दाईं तरफ अच्छा कोर्ट कवर करवाती हैं। A lot of unforced errors coming from Kavi Priya. At the same time, Tasnim looking a bit more confident with her movements. लेकिन इस बार अंक मिला कवि प्रिया को। I would say that was a slight casual approach, probably trying to judge the shuttle, and last minute made a decision of playing that. Once again, Kavi Priya plays that down the line smash wonderfully. She needs to keep playing those a bit more, but at the same time use them wisely, I would say. और इस बार चूंकि कवि प्रिया स्कोर 20-16 है, मात्र 1 अंक की जरूरत इस समय तस्नीम को इस गेम को जीतने के लिए। और इस बार अनफोर्स एरर, एक मौका मिला है, स्वर्णिम अवसर है इस अंतर को कम करने का कवि प्रिया के पास। कवि प्रिया की सर्विस। गुड एंटिसिपेशन और तस्नीम ने इस तरह से एक गेम जीत लिया है और अंतिम स्कोर इस गेम का रहा 21-17 तस्नीम के पक्ष में। That was a very confident line call taken by Tasnim Mir. Coach is giving a word of advice to the players. It's very important to get used to the kind of atmosphere. I think it's such a lovely atmosphere here with a lot of young kids around, cheering for their local favorite Tasnim, at the same time encouraging Kavi Priya as well. जाहिर सी बात है तृप्ति, जब कोई आपके राज्य का खिलाड़ी होता है सामने तो उसको वहाँ पे जो मौजूद खासतौर से स्टूडेंट्स होते हैं वो जानते हैं और उसको ज़्यादा चेयर अप करते हैं। और क्या पता इनमें से कोई तृप्ति निकले, कोई पीवी सिंधु निकले, कोई साइना नेहवाल निकले। मैं समझती हूँ अच्छा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, बच्चों को सीख अच्छी मिलती है यहाँ से। Definitely, watching any sport live makes a huge difference. एक माहौल बन जाता है और and that is what, you know, the memories they take back and the inspiration when they watch these kind of players is required for these youngsters. Here you can see the rally where Tasnim took that very confident line call.
निर्णय सही नहीं ले पाई यहाँ पर। आउट, अनफोर्स एरर। इसी के साथ कवि प्रिया ने इस दूसरे गेम में अपना खाता खोला है। Well, Sunita, I felt that was falling inside, but I think it's just a little bit of drift what is there, which is driving the shuttle slightly away. और इस बार ये देखिए किस तरह से ड्राइव किया, नेट क्रॉस करवाया, कोई तैयारी नहीं थी और अंक जीत के अमीर रड। सराहना करनी होगी। कवि प्रिया 2, तस्नीम 1। Kavi Priya doing very well, but I would say when it comes to finishing the rally, at the last stroke, gets a bit casual and a lot of errors coming through her. And there you see another one. Needs to be a bit more consistent to play against Tasnim. और इस बार ये देखिए किस तरह से तस्नीम, जैसा कि तृप्ति ने कहा, ठीक उसी तरह से ये देखिए ये कवि प्रिया, इसी बीच सर्विस। अच्छा नेट प्ले देखने को मिला, लेकिन तस्नीम ने अनफोर्स एरर के जरिए एक मौका दिया है कवि प्रिया को। यहाँ कवि प्रिया पहुंची है 3 पर, तस्नीम 4 पर, 1 अंक का मार्जिन यहाँ पर। Oh, well, that was wide. Again, from the angle what we are seeing, it looks like it's going to fall inside, but it's just the drift which is playing that role over there. इस बार गलती हुई मीर से, तस्नीम मीर से, अनफोर्स एरर। और एक बार, पहली बार इस मैच में कवि प्रिया आगे पहुंची हैं। हालांकि अंतर सिर्फ 1 अंक का है, 5-4 है। बहुत ही अच्छा कोर्ट में खिलाया, दाएं बाएं दाएं बाएं, और इस तरह से थोड़ा सा भी अगर रिलैक्स करेंगे, ये देखिए किस तरह से तस्नीम खिला रही थी। और यहाँ कवि प्रिया ने तस्नीम की बाईं तरफ प्लेस किया। और फिलहाल कवि प्रिया 6, तस्नीम 4। Kavi Priya looking much more better now, making Tasnim move a bit more on the court. अच्छा एंटिसिपेशन तस्नीम मीर का, एक और अनफोर्स एरर, अंतर को कम किया, 5-7 सर्विस तस्नीम की। बहुत ही शानदार डाउन द लाइन स्मैश। वापसी हुई है इस दूसरे गेम में तस्नीम मीर की, अंतर कम हुआ है। तृप्ति, आपका क्या कहना है? Tasnim was ready there, anticipated that, and was in a very good position. Well, that's fallen in. Misjudged by Tasnim. Still going very close with the score lines.
और इस बार जबरदस्त शॉट तस्नीम की नेट के करीब आई, सराहना करनी होगी। देखिए किस तरह से तस्नीम ने अंक अर्जित किया था, थोड़ा सा भी रिलैक्स नहीं कर सकते हैं आप इस तरह से। और दोनों खिलाड़ी 8-8 की बराबरी पर। मुकाबला चल रहा है तस्नीम और कवि प्रिया के बीच। तस्नीम की सर्विस, लंबी रैली और अंक मिला तस्नीम मीर को। ये देखिए, And Kavi Priya playing very beautifully here, I would say, you know, making her move in all the corners. That's what she needs to consistently do. इस बार अनफोर्स एरर और एक बार फिर ये अंक मिला तस्नीम को। और एक बार फिर दोनों 10-10 की बराबरी पर। कांटे का मुकाबला, संघर्षपूर्ण मुकाबला। और इस बार कामयाबी मिली है कवि प्रिया को। हाफ टाइम स्कोर कवि प्रिया 11, तस्नीम 10। तृप्ति, जैसा आप कह रही थी कि कवि प्रिया जो है उनकी कोर्ट कवरेज दोनों कॉर्नर्स को बहुत अच्छा कवर करती हैं, तो इसी वजह से शायद इनकी वापसी हुई है। क्योंकि शुरुआत से ही उन्होंने इस गेम पर अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश की कवि प्रिया। जबकि तस्नीम का खेल प्रदर्शन अपेक्षाकृत इस सेकंड गेम में वो नहीं दिखा जो कि पहले गेम में था। Yes, I would say that, you know, in the initial part of the match, I would say that Kavi Priya was looking, or rather making a lot of unforced errors, even though she was in a good place, in a good position. But over here, what I feel is she's playing a bit more consistently now. Her strokes are going, you know, on the other side much steadily. And that is what she has to keep doing for her to win this second game. कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और इसी के माध्यम से 2 और अंक अर्जित किए कवि प्रिया ने दूसरे गेम में। 13-10 स्कोर। और बहुत जल्दी गियर बदलती हैं, दाएं से बाएं तरफ प्लेस किया और एक और अंक अर्जित किया। Well, here I would say that Kavi Priya is catching her very well in the forecourt, but once again there she goes, Kavi Priya, with those half smashes. I just need to understand whether there is any, you know, niggle with Tasneem's leg. We can see her leg is strapped. If that is bothering her for her forecourt moment. इस बार डाउन द लाइन फेसिंग तस्नीम मीर की, और एक मौका मिला इस अंतर को कम करने का। स्कोर 11-15। ये देखिए किस तरह से तस्नीम मीर बाहर दे बैठी। अनफोर्स एरर, एक बार फिर अंतर 5 अंकों का। ये देखिए किस तरह से अंक मिला था 16वां। तिरछा क्रॉस कराना चाहती थी लेकिन बाहर दे बैठी। अनफोर्स एरर, इस तरह की गलतियों से बचना होगा। 17-11 स्कोर। दूसरे गेम में कंफर्टेबल लीड इस समय कवि प्रिया के खाते में। एक बार फिर उसी तरह से
एंगुलर शॉट देना चाहती थी और अंक मिला इस बार तस्नीम को। ये देखिए किस तरह से 12वां अंक अर्जित किया था तस्नीम ने। ये एंगुलर शॉट था, कोई तैयारी नहीं थी। और एक बार इस बार तस्नीम ने अनफोर्स एरर आउट, और एक और कदम आगे बढ़ी हैं कवि प्रिया। Is completely losing her rhythm. Tasnim here giving a huge lead to Kavi Priya, 20-12. एक मौका तस्नीम को, 13-20। लॉन्ग सर्व, और इस तरह से ये दूसरा गेम कवि प्रिया ने 21-13 से जीत लिया है। ये देखिए किस तरह से 21वां अंक अर्जित किया था कवि प्रिया ने। ये है कवि प्रिया, बेस लाइन के पास आई, और ये तस्नीम ड्रॉप किया और एंगुलर नेट क्रॉस करवाया और 21वां अंक अर्जित किया। तो इस तरह से दोनों 1-1 की बराबरी पर। तृप्ति, आपने ठीक कहा था कि कवि प्रिया सेकंड गेम में कंसिस्टेंट है, बेहतर फोकस है और बहुत वेरिएशन के साथ खेली, तो यही वजह है कि सेकंड गेम में उनकी वापसी हुई है। फिलहाल ये डिसाइडर गेम है, देखना ये है कौन जीतती है, क्योंकि दोनों खिलाड़ी अच्छा खेल प्रदर्शन कर रही हैं। Yes, absolutely, and we will have to see how Tasnim makes a comeback after the second game. She wasn't looking very good in the second game. I'm not very sure if it's the issue with her hamstring, which is strapped, which we see, or it's just that she was unable to, you know, get her rhythm. But she has started off well. That's going to be very, very important. She needs to show a little more aggressiveness in the third game. That was a good service from Tasnim. और ये तस्नीम का डाउन द लाइन शॉट। स्कोर कवि प्रिया 1, तस्नीम 2। वापसी करनी ज़रूरी होगी अगर इस गेम को, इस मैच को जीतना है तस्नीम को। फिलहाल 2 अंकों से आगे है तस्नीम। Well, once again you would see Tasnim getting points on her service. The courts are a bit slow. It gets a bit tricky with the drift around with respect to the judgment. But Kavi Priya nicely converts that into a winner. Was ready for that. आउट। अच्छा एंटिसिपेशन, अच्छी जजमेंट और एक अनफोर्स एरर के जरिए 1 अंक। अच्छी रिदम में है शुरू से तस्नीम, जाहिर है इस अंतर को कम करने की कोशिश होगी कवि प्रिया की फिलहाल। और ये नेट फॉल्ट, अनफोर्स एरर और सर्विस फिलहाल कवि प्रिया की। एक बार फिर साइड लॉबी में अंतर, शुरुआती क्षणों की अगर बात करें तो बड़ा अंतर है तस्नीम की सर्विस। राइट, गलत जजमेंट।
A lot of errors coming from Kavi Priya. I would say it is probably only because Tasnim is getting a good length, especially with her service. And once again, a good service. Kavi Priya couldn't send back toss to the back court, and Tasnim catches it very well. और अनफोर्स एरर, काफी दबाव, एकाग्रता की कमी. Well, I would say, Sunita, at times the service also can be an aggressive stroke. Only because if you get a good length, the way Tasnim is getting the services here, it really makes the opponent, keeps the opponent at a task. एक मौका कवि प्रिया के पास, 4-10. और इस बार वेरिएशन, एंगुलर शॉट दिया, थोड़ा रिलैक्स कर रही हैं, काफ़ी मैं कहूँगी जो कंसंट्रेशन होना चाहिए उसकी कमी दिखाई दे रही है. शायद काफ़ी दबाव है इस समय कवि प्रिया पर. अंतर बड़ा है, कवि प्रिया 4 अंकों पर, तस्नीम 11 पर. She needs to open up herself and play, just give her heart out, because she's done well in the second game when she was consistently able to get those kind of rallies. She needs to still open up herself in the third game. तीसरा गेम हाफ टाइम स्कोर 11-4, 7 अंकों का मार्जिन है, बड़ा मार्जिन है. तस्नीम का अच्छा डेफिनेटली खेल रहा है तीसरे गेम में, काफ़ी दबाव में खेली हैं. और ये स्कूल के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में. कवि प्रिया को कंसिस्टेंट होना होगा अगर वापसी करनी है इस गेम में, मैच जीतना है तो. फिलहाल सर्विस, और जैसा मैंने कहा था अनफोर्स एरर, काफ़ी दबाव बॉडी लैंग्वेज में देखा जा सकता है. फिलहाल पहचान के लिए संतरी रंग में कवि प्रिया. अनफोर्स एरर, आउट. इस तरह की गलतियों से बचना होगा. अंतर बरकरार है, 7 अंकों का अंतर. ये तीसरा गेम, डिसाइडर मैच गेम, और ये है मीर, अनुभवी खिलाड़ी हैं. ये सर्विस, ट्रिकी सर्विस, कोई मौका नहीं था वहां, और 14 पर पहुंची हैं. जैसा कि आपने कहा था, बहुत टेक्टफुल सर्विसेज हैं तस्नीम मीर की, और सर्विस के माध्यम से अंक लिया. धीरे धीरे ये गेम, ये मैच कवि प्रिया के हाथों से फिसल रहा है. बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा अंतर है. Yes, it's a good lead for Tasnim. The movements are far more better coming in from Tasnim. A bit of an aggressive play, anticipating it well. एक बार फिर कामयाबी मिली है तस्नीम को. That was a wonderful deceptive drop from Tasnim. तीसरा गेम तस्नीम और कवि प्रिया के बीच, मात्र 3 अंकों की जरूरत, 3 पॉइंट्स की जरूरत इस समय तस्नीम को ये गेम जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए. और इस बार अनफोर्स एरर. She definitely tried well, I would say, Kavi Priya. She has been getting a lot of points on that stroke, but unfortunately it went away. और ये अंक मिला तस्नीम मीर को. अंक मिला था कनुप्रिया को.
और मात्र एक अंक की जरूरत इस समय तस्नीम मीर को ये गेम जीतने के लिए, ये सेट जीतने के लिए, ये मैच जीतने के लिए। 14 अंकों से आगे हैं। And wonderfully, Tasnim finishes that one. Takes it really high with a good net play. Defeats Kavi Priya comfortably, I would say, in the third game. 21-6. And you can hear the cheer from all the kids in the stadium supporting Tasnim Mir from Gujarat. तो छठे गेम में तृप्ति कुल मिलाकर एक तरफा मुकाबला रहा। काफी दबाव में शुरू से ही खेली कवि प्रिया और अपना वास्तविक खेल नहीं खेल पाई और शुरू से ही हावी होकर खेली और उसी के परिणाम हमारे सामने हैं। 21-6 से ये डिसाइडिंग गेम जीता तस्नीम मीर ने। तो इस तरह से ये कवि प्रिया और तस्नीम मीर के बीच खेला गया मुकाबला तस्नीम मीर ने जीत लिया है। और देखिए इस मैच के कुछ महत्वपूर्ण अंश। कवि प्रिया तस्नीम का बेहतर खेल रहा, ये बैककोर्ट में खिलाया और गुड एंटीसिपेशन यहाँ तस्नीम मीर की। और यहाँ कामयाबी मिली थी कवि प्रिया को। और कुल मिलाकर इस मैच का स्कोर रहा था 21-15, 13-21 और 21-6। तो ये महिला वर्ग का तीसरा मुकाबला तस्नीम मीर ने कवि प्रिया को 2-1 से हराकर जीत लिया है। Well, it's a jam-packed stadium here, the Pandit Deen Dayal Indoor Stadium here in Surat, which has been hosting badminton events of the 36th National Games. And the next match coming up on court number 1 is the men's singles between Gulshan Kumar and Ariman Tandon. Once again, we have Ariman Tandon representing Gujarat. We just saw Tasnim Mir winning her match in 3 games. Gulshan in the near court from Delhi. And for the men's singles match, we have in the umpire Ashita Joni. Service judge is Krishnaveni. And these two from Gujarat, Ariman Tandon is shown a lot of promise. He is in the far court. And you have Gulshan Kumar in the near court. And this promises to be, of course, both of them not seeded here, but both have done very well at the national level. Ariman Tandon as well as Gulshan Kumar. Both the players with some experience here, who will be contesting the men's singles round of 16. And these youngsters getting an opportunity here at the 36th National Games. And in the absence of some of the top players of the country, it's an opportunity
to really do well here, make a name for themselves. And gold medal at the National Games would what they would all be eyeing. The players in contention here. We've had some very good matches here on court number 1. Began this morning with the top seed Malvika Bansod getting the better of Unnati Huda in straight games. Then we had Aditi Bhatt and Aishani Tiwari. Aditi Bhatt of Uttarakhand prevailed over Aishani Tiwari of Gujarat again in straight games, 21-11, 21-18. And all set for the men's singles match to get underway. It's Gulshan Kumar who serves. And quickly seizing his opportunity, getting a point. Cross-court placement, gaining a point. Both going into attacking mode, almost playing parallel strokes there. And it is Gulshan who gets the point. 2 love. As once again, I have Niti Rawat joining me here in the comm box. Welcome back, Niti. थैंक यू सो मच किशोर. आज के दिन का ये चौथा मुकाबला कोर्ट नंबर 1 पे और एक अच्छी शुरुआत की है. और आप बता रहे थे कि किस तरीके का एक्सपीरियंस है इन दोनों ही शटलर्स को. अपने पास एक्सपीरियंसेस में उन्होंने किस तरह से अलग अलग चैंपियनशिप में जीत हासिल की है. कार्तिकेय वर्सेस आर्यमन, 3-0 के एडवांटेज इस समय कार्तिकेय के पास है. इस समय सेट में अच्छा प्रदर्शन कबूत रही है. देश की नहीं दिया हम स्थापित कर. देश की किरण देवी टक्कर दी. मिनट 34 पूनम रही. लेन नंबर 4 में हरियाणा और गोल्ड मेडल. बाकी खिलाड़ी हैं कि उसके बोट रेसिंग कितनी फेमस है, चाहे उनके ट्रेडिशन में ये रेस मिनट 46 सेकंड में वो लाल कलर की रही. 4-0 इन फेवर ऑफ कार्तिकेय और पहला सेट इस समय प्रगति पर. Early lead for Kartikeya Gulshan Kumar of Delhi, raising away to a final lead against the local boy Aryaman Tandon. आर्यमन टंडन जो कि गुजरात से हैं, उनके सामने है कार्तिकेय गुलशन कुमार. अभी तक कोई मौका नहीं मिला है आर्यमन को और ये फाइनली एक मौका मिल गया है अपना अकाउंट ओपन करने का. काफी अच्छा रिटर्न था. उसके बाद में टॉस की कोशिश की थी कार्तिकेय ने, लेकिन सीधा शटल नेट में और 4 पॉइंट्स के एडवांटेज इस समय कार्तिकेय के पास. आर्यमन के लिए पहला मौका सर्विस का. Big lead at the moment, 6-1 for Gulshan Kumar Kartikeya of Delhi. And Aryaman Tandon this time doing very well. He defended extremely well. His placement was spot on. Getting 2 points on the trot there. Aryaman Tandon trying to stage a comeback at 3-6. आर्यमन टंडन ने इस बार डाउन द लाइन स्मैश किया. पूरी तरह से अपने लिए उन्होंने वहां पर मौका बना लिया था
कैसे बैक फुट पर और बैक कोर्ट पे भेजा और उसके बाद इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करके फिनिश किया। एक शानदार विनर लगाया 6-4 और अब धीरे धीरे वापसी करते हुए आर्यमन टंडन। किशोर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको गुलशन के खिलाफ और ये दोनों ही शटलर्स जो अभी हाल ही में हुई इंडिया छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल चैलेंज जो कि 20 सितंबर से 25 सितंबर तक हुआ था उसे खेल कर आ रहे हैं, तो अभी फॉर्म में है, अपने कलर्स में है और यहाँ पर मौका है नेशनल गेम्स के दौरान अच्छे परफॉर्मेंस का। Precisely, and the reason, another reason also is these players play so much against each other. They almost know each other's game inside out. Or this time once again attacking here. Gulshan Kumar. Delhi doing very well. Looks to be in good touch. Leading 8-4 here in the opening game of the men's singles round of 16. Here in the badminton individual events at the 36th National Games. The badminton being played here at the Deen Dayal Upadhyay Indoor Stadium at Surat. Aryaman Tandon, the moment he created that opening, he was quick to latch on and finish. And look at the accuracy of that down the line winner. काफी एग्रेसिव स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश लगातार कर रहे हैं आर्यमन। स्कोर में आप देख सकते हैं कि बेशक वो ये देखिए लिफ्ट किया था वहां पे कार्तिकेय ने और उसको कन्वर्ट किया एक विनर में आर्यमन ने। 9-5 का स्कोर है, 4 पॉइंट्स का एडवांटेज है, लेकिन आर्यमन ने पिछले कुछ समय में जो स्ट्रोक्स लगाए हैं किशोर, उससे लगता है कि आने वाले फेज में वो इस लीड को जल्द ही कवर कर लेंगे। Once again, Aryaman Tandon is now decided that he'll be playing more near the net. In fact, that's the net play which got him a point there. Aryaman Tandon. काफी वाइड रिटर्न और साइडलाइन से बाहर। 11-6 पहला टाइम आउट इस सेट का। पहला सेट चल रहा है और ये मेन सिंगल्स में कोर्ट नंबर 1 पे पहला मुकाबला है। कार्तिकेय अभी एडवांटेज पे बने हुए हैं। फाइव पॉइंट्स की लीड है, आर्यमन पिछड़ रहे हैं। कार्तिकेय के पास ये लीड मेंटेन करनी है उनको, कार्तिकेय को। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले यहाँ पर चल रहे हैं सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में। आप देख सकते हैं इसका टेलीकास्ट लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन डीडी स्पोर्ट्स और प्रसार भारती के यूट्यूब स्पोर्ट्स पर। एक जबरदस्त विनर लगाया है इस बार कार्तिकेय ने। ओपोनेंट कोर्ट को पूरी तरह से रीड किया और ओपोनेंट फुटवर्क को भी रीड करके ये स्मैश किया। हाफ स्मैश वहां पे कार्तिकेय ने लगाया है। It was a very difficult stroke actually, if you see from a very, he wasn't in the best of positions, but finally executed it very well. Gulshan Kumar Karthikeya serving 12-7.
बैक एंड पे पहले रिटर्न और उसके बाद में हाफ स्मैश 13-8। Gulshan Kumar Karthike. He's really had a measure of his opponent the last few points. Got a handsome lead at the moment, 14-8. And Ariman Tandon, the moment he got an opportunity, that opening he made, and he finished it off beautifully. ये एक पावर पैक स्मैश था, उन्होंने कार्तिक ने लिफ्ट किया था और इसी को अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया आर्यमन ने। अपनी स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल किया। आर्यमन अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं क्योंकि इस फर्स्ट सेट में थोड़ा मिडिल फेज में पहुंच गया है मुकाबला। बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक्स लगाए हैं आर्यमन ने। पहले डाउन द लाइन, उसके बाद क्रॉस कोर्ट और कभी मिड लाइन। Ariman Tandon now staging a comeback. And very aggressive play, as you would see there. And relentless attack there. 14-11. The Ariman would be serving at 11-40. And Nitya, another thing is, one never used to see much of parallel strokes in years gone by, but badminton has become so fast-paced. Even not only in doubles, in singles you say a lot of attacking strokes played very parallel to the net. तैयार नहीं थे उस रिटर्न के लिए और जब बॉडी लाइन पर वो अटेम्प्ट आया तो रिटर्न करना काफी मुश्किल था आर्यमन के लिए। 4 पॉइंट की लीड है कार्तिके के पास, लेकिन ये लीड जो है कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है। ओह, लास्ट मिनट तक वेट किया, एंटिसिपेट किया। बढ़िया जजमेंट। एक लंबी रैली थी, काफी लंबी रैली थी किशोर, और जो काफी अच्छे स्ट्रोक्स जो है देखने को मिले। दोनों ही खिलाड़ी की तरफ से अटैक हुआ, डिफेंस हुआ, रिटर्न हुआ और उसके बाद फायदा मिला कार्तिके को। Absolutely, Niti. This was one of the better rallies of the opening game. 16-11 could be a crucial point going ahead. Gulshan Kumar keeping his composure there. Aryaman was just upping the pace over there. Gulshan doing very well. Good retrieval, and finally, look at that. Look at the placement. Oh, that's a wonderful shot. Speed, strength और ये पावर पैक विनर। Can Ariman Tandon claw his way back here? 5 points separating the two players in the opening game.
reduces that lead by a point. Ariman Tandon. किशोर काफी एग्रेसिव शॉट्स और स्ट्रोक्स खेले हैं आर्यमन ने, लेकिन अभी भी वो डिफरेंस जो है, जो उनका मकसद है, वो फिनिश नहीं हो रहा है। इससे लगता है कि डिफेंसिव टैक्टिक्स पे काफी स्ट्रॉन्ग है इस समय गुलशन। At this juncture, the last thing that Ariman would want is to make an unforced error. At the moment, it does like Gulshan Kumar Karthikeyan has a measure of his opponent. Can he just finish this game here? Oh, that was in many ways quite tame effort. Maybe he was caught in two minds there. 19-13, inching towards victory in the opening game here. ड्रिबल भी किया था वहां पर आर्यमन ने, लेकिन उस पे बेहतरीन लिफ्ट और उसके बाद अपने लिए ओपनिंग क्रिएट करके क्रॉस कोर्ट फिनिश। आखिरी पॉइंट चाहिए इस सेट को जीतने के लिए। वैरायटी ऑफ स्ट्रोक्स, टॉस, लॉब शॉट और उसके बाद में अपने लिए ये एक पॉइंट गुलशन इसी के साथ 21-13 के स्कोर से जीत गए हैं इस पहले सेट को। इस 36 नेशनल गेम्स का बैडमिंटन इवेंट, इंडिविजुअल इवेंट्स शुरू हो चुके हैं और ये चौथा मैच इस कोर्ट नंबर 1 पे। और well, there you see Ariman Tandon, who had lost that opening game 13-21. The men's singles events in badminton in progress at Surat. This is the Pandit Deen Dayal Upadhyay Indoor Stadium. And individual events in badminton beginning this morning. We had 3 of the women's singles matches, and now we're having the men's singles match between Gulshan Kumar Karthikeyan and Ariman Tandon. And Gulshan Kumar having winning the opening game 21-13. There he is from Delhi. And the local boy, Ariman Tandon. Nitibai, what one saw in the opening game, Ariman Tandon played well in patches, but wasn't too consistent. And he needs to just up his game here. It's going to be a must-win game for him, the second game. जी हाँ, फर्स्ट सेट में जिस तरह से खेले हैं आर्यमन, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं दिखाई है, उसे मेंटेन नहीं किया है। कई ओकेजन्स पर उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मैशेस भी हिट किए, काफ़ी अच्छे विनर्स भी लगाए, लेकिन जो लीड हासिल की थी गुलशन ने उनके खिलाफ, उस लीड को बरकरार रखा और आखिरकार जीत हासिल की 21-13 के स्कोर के साथ। किशोर, इस मैच से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आर्यमन जो है सिर्फ 13 पॉइंट्स बना पाएंगे। वी वर एक्सपेक्टिंग सम स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट बिटवीन दीज टू शटलर्स। नेशनल चैंपियनशिप में से पहले खेल चुके हैं, अभी हाल ही में एक और नेशनल चैंपियनशिप खेलकर आ रहे हैं, जहां पर आर्यमन का परफॉर्मेंस गुलशन से ज़्यादा बेटर था। गुलशन को राउंड ऑफ 64 में बाहर होना पड़ा, वहीं आर्यमन जो है क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पे नतीजा बिल्कुल ऑपोजिट है। Well, look at that. Aryaman now making his intentions very clear right at the start. And superb attacking play by Aryaman. He's continuing that. Well, that's attacking on both flanks. And Niti, that point which you made about these two, in fact, reminds one of H.S. Pranoy and Shrikant. It was the same with them as well. National championship, one would be the winner. And maybe the national games, the other will. So they know each other's game so well.
जबरदस्त किल यहाँ पर देखिए, पहले ड्रिबल किया, उसके बाद में यहाँ पे किल किया, ब्लॉक करने की कोशिश जरूर की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। 3-0 का स्कोर इस सेट में डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं। शुरुआती क्षण है अभी इस सेकंड सेट के। आर्यमन 4-0। ये एक स्पोर्ट्समैनशिप का ग्रेट एग्जाम्पल है। काफी अग्रेसिव और फोर्सफुल अटेम्प्ट था ये, जिसके लिए उन्होंने सॉरी बोला है गुलशन को। और गेम्स का मकसद भी है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ये शॉट्स हमने पहले भी देखे हैं किशोर फर्स्ट सेट में, लेकिन वहां पर फायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन अब देखिए पूरे कलर्स में है, पूरे फॉर्म में, बॉडी लाइन स्मैश वहां पर हिट किया है आर्यमन ने। बस इस लीड को बचा के रखना है। इस मुकाबले में बने रहने के लिए आपको ये सेट जीतना ही है। Handy lead to have here, and in fact, that unforced error on return would mean that Aryaman got a handy lead of 6 love now in the second game. The first point in game number 2 coming the way of Gulshan Kumar Karthike. Quickly shifting gear. एक बढ़िया एक्सचेंज हुआ था दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से नेट पे, और सर्विस पे ही ये स्ट्रॉन्ग रिटर्न। रिएक्शन स्पीड सोचिए क्या होगी उनकी अगर रिकॉर्ड की जाती इस पॉइंट के दौरान। यानी रिसीव करने के टाइम पे उन्होंने स्मैश किया है, वो भी क्रॉस कोर्ट। पलक झपकते ही अटैक किया। एक कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं इस सेकंड सेट के दौरान। लिफ्ट किया पहले, अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी, लेकिन उसके बावजूद गुलशन से साइडलाइन से बाहर। Aryaman, right from the onset as far as the second game is concerned, has made his intentions very clear, playing very aggressively. उनके एग्रेशन का जो रिजल्ट है वो उनके रैकेट पे दिखने लगा है। अब स्ट्रिंग्स थोड़ी सी उनकी डिस्टर्ब जरूर हुई होंगी। लगातार स्ट्रॉन्ग स्मैशेस किए हैं आर्यमन ने। टू सेकेंड सेट और मेन सिंगल्स का इस राउंड ऑफ 16 का ये कोर्ट नंबर 1 पे पहला मुकाबला, गुलशन कुमार वर्सेस आर्यमन टंडन। रेडी नहीं थे उस रिटर्न के लिए ऐसा लगता है, और इशारा भी किया। शायद मैट पर थोड़े से स्वेट के चांसेस, उनका पैर स्लिप कर गया था। Excellent rally. And Aryaman Tandon, the moment he saw that this could finish it off, he did it in style. Superb placement, precise placement. वहां डीप फोरहैंड पर रिटर्न था।
एक बार फिर पावरफुल स्मैश क्रॉस कोर्ट। हालांकि उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेंथ वहां पर इस्तेमाल नहीं की है, टैक्टिकल प्ले देखने को मिला था। हाफ स्मैश वहां लगाया था आर्यमन ने। दस 3 का स्कोर। कार्तिकेय फर्स्ट सेट उन्होंने जीता था 21-13 से, लेकिन इस सेकंड सेट में एक अच्छी खासी लीड हासिल कर ली है इस समय आर्यमन ने। 11-3 की एडवांटेज पर इस समय आर्यमन। Good comeback by Aryaman Tandon after losing the opening game 13-21. He's come back very strongly, and especially while attacking to the baseline as well as keeping his opponent at the net. He's been top class here. Dominating performance, 11-3. And these two players, having played each other so many times in the national circuit, almost know each other's game inside out. And so it becomes all the more difficult for them to strategize. Quite a few unforced errors that Aryaman Tandon made in that opening game. But second game, who looks very focused, very determined. This is Gulshan Kumar Karthikeya of Delhi. Won the opening game comfortably at 21-13, but really struggling here in the second game. Round of 16 matches in the individual events in badminton began this morning at the Deen Dayal Upadhyay Indoor Stadium in Surat, Gujarat, part of the 36th National Games. Well, this is what has been happening right through the second game. Somehow, Gulshan Kumar, who had a measure of his opponent in the first game, his game has fallen apart here in the second game, Neeti. एक टॉस दिया था उन्होंने अपने लास्ट एक्शन से पहले आर्यमन ने, लेकिन उसके बाद जो है पूरी तरह से उसको एडवांटेज बना लिया गुलशन ने। 13-4। आउट इस बार। 14-4। ये 10 पॉइंट की लीड जो है अब कवर अप करना शायद मुश्किल होगा गुलशन के लिए। और किशोर, इससे पहले हम लगातार लॉन्गर रैलीज की बात कर रहे थे, लेकिन ये मैच ऐसा है जहां पे इतनी लॉन्गर रैलीज देखने को मिली नहीं है। इससे पता लगता है कि दोनों ही शटलर्स कितने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं एक दूसरे के खिलाफ। You're right, just a couple of long rallies one has seen in this, not only this game, in the entire match thus far. And both also very attacking players by the evidence of what one has seen. And Aryaman now serving at 15-4. And somehow could not quite judge it. Sometimes it happens, the lights not able to sight the shuttle well. As you would see, that's what happened with Aryaman. Opportunity here for Gulshan Kumar Karthik, but trailing by a fair distance. This time Gulshan hung in there, but finally there was this
chance which Ariman had, and he was not going to miss out on that. 16-5. Well, at the net this time, unable to place it the way would have liked. Ariman just going out there. And sometimes in a situation like this, Niti, what happens is the player may not Wow, this is the best I have seen in this match so far. 16-6. यहाँ देखिए किस तरह से पूरी ऑफ पोजीशन थे गुलशन और कोई चांस नहीं छोड़ा वहाँ पर आर्यमन ने उसे पूरी तरह से कन्वर्ट किया और विनर लगाया। 17-6 का स्कोर डोमिनेट किया हुआ है, कोई मौका नहीं है गुलशन के लिए यहाँ पर वापसी का। कर सकते हैं तो सिर्फ अपने डिफरेंस को कम कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इस सेट की जीत काफ़ी मुश्किल होगी और जो जीत उन्होंने हासिल की थी पहले सेट में उसे मेंटेन करना चाहिए था। 21-13 यहाँ पे ये अनफोर्स एरर्स काफ़ी बड़े नुकसान बन सकते हैं उनके लिए। As I was saying, what happens in a situation like this, Karthik not in his elements here in the second game, as you rightly pointed out. What he would like to do is just maybe reserve his strength for the deciding game, and it just seems he's just going through the motions at the moment because it's a long way to cover. 8-17. तो किशोर आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि वी आर गोइंग इनटू द थर्ड गेम और थर्ड सेट ऑफ दिस मैच। ये क्या था? ये साफ साबित होता है कि किस तरह का ये कॉन्फिडेंस है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग एक्शन के दौरान ऐसे अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं। गुलशन वहाँ उन्होंने लिफ्ट किया था, अपने लिए अपना मौका बनाया था कि ताकि उन्हें ऐसे चेंजेस के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इतने क्विकली उन्होंने रैकेट चेंज किया है। 18-8 का स्कोर, सिर्फ 3 पॉइंट्स चाहिए आर्यमन को इस मुकाबले में बराबरी करने के लिए। पहला सेट उन्होंने गवा दिया था 13-21 से और अब 10 पॉइंट्स की लीड इस सेकंड सेट में। ये इस सेट की जीत उनसे कोई नहीं छीन सकता। उन्हें ऑफ फुट किया, उसके बाद ये पॉइंट। Ariman seems to be in a hurry, makes an unforced error there. 8-19. Gulshan Kumar Karthike seems to have thrown in the towel as far as the second game is concerned, and it's quite sensible as well. We can keep his energy going for the all-important decider. तो सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए इस मुकाबले को डिसाइडिंग सेट में जाने के लिए। ये डेयर अटैक था ऐसी सिचुएशन में और फाइनली ये सेकंड सेट जीतकर आर्यमन ने इस मुकाबले में वापसी कर दी है। 21-9 के स्कोर के साथ उन्होंने सेकंड सेट को जीत लिया है। फर्स्ट सेट गवा दिया था 13-21 से, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमबैक, ये सिर्फ कमबैक नहीं है, उन्होंने पूरा डोमिनेट किया है इस सेट के दौरान। जो स्ट्रोक्स उनके फिनिश नहीं हो रहे थे फर्स्ट सेट में, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा टैक्टिकल प्ले को मिक्स किया और नतीजा आपके सामने कि उन्होंने गुलशन को सिर्फ 9 पॉइंट्स ही बनाने दिए इस सेकंड सेट में। तो तीसरा डिसाइडिंग सेट जो तय करेगा कि इस मुकाबले में जीत हासिल करके कौन जाएगा क्वार्टर फाइनल में। और राउंड ऑफ 16 का मुकाबला है। 21-13 से पहला सेट जीता था गुलशन कुमार ने और अब सेकंड सेट में वापसी की है आर्यमन टंडन ने। एक वन साइडेड अफेयर रहा ये सेकंड सेट।
ये तीसरा और डिसाइडिंग सेट, जो आखिरी मौका है दोनों ही शटलर्स के पास कि कौन होगा जो दिखाई देगा टॉप 8 में मेंस सिंगल्स में। गुजरात के सूरत शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम, और डे 1 है आज इंडिविजुअल इवेंट्स का, जबकि डे 4 है बैडमिंटन एक्शन का। टीम चैंपियनशिप का फाइनल्स हो चुका है, और व्यूअर्स को हम एक बार याद दिला दें कि कल जो है टीम चैंपियनशिप के फाइनल्स हो चुके हैं, जिसमें तेलंगाना ने गोल्ड मेडल पे कब्जा जमाया और केरला रही दूसरे स्थान पर। (36) नेशनल गेम्स और 36 स्पोर्ट्स में 7,000 एथलीट्स गुजरात के 6 शहरों में अपनी अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। All in readiness for the decider. Oh, what a rally to start off the second, the deciding game, Niti. And you're sure that you will see a different Gulshan Kumar Karthikeyan in this deciding game. ये टैक्टिक्स अच्छी थी, नेट प्ले की कोशिश थी, एक बहुत ही प्यारा ड्रिबल था, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ एक विनर में, और इसका नुकसान हुआ है। ये पहला पॉइंट इस सेट का कार्तिकेय के लिए। ओह, हाफ स्मैश आर्यमन। शुरुआत काफी अच्छी हुई है इस सेट की, क्योंकि ये जीत तय करेगी कि कौन होगा टॉप 8 में मेन सिंगल्स कैटेगरी में। इस रैली में शायद ही कोई कोर्ट का, ओपोनेंट कोर्ट का कोई कॉर्नर होगा जिसे यूज नहीं किया होगा आर्यमन ने। डाउन द लाइन हो, क्रॉस कोर्ट हो, फ्रंट कोर्ट हो या फिर बैक कोर्ट, हर जगह पर अप्लाई करते रहे। आर्यमन टंडन गुजरात से हैं, लोकल बॉय। एक कमबैक किया है उन्होंने सेकंड सेट में, और इस तीसरे सेट में 2-1 से लीड पर। किशोर, एक चीज़ है कि जब कल के जो मुकाबले हुए थे वहाँ पे थोड़ा ड्राफ्ट और ड्रिफ्ट का इशू नज़र आ रहा था, लेकिन आज जो है वो इतना एडवांटेज या फेवर नहीं कर रहा है ड्राफ्ट या ड्रिफ्ट। थोड़ा सा बैलेंस है आज स्टेडियम के अंदर, जो एसी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया गया है, क्योंकि कल के मुकाबलों में काफ़ी सारे खिलाड़ियों को उस ड्रिफ्ट का नुकसान उठाना पड़ा था। You're right, Niti. We also can experience it. It's much more, pleasant conditions. Not as cold as it was on the earlier days. So Aryaman Tandon, the local favorite, can he maintain the momentum that he exhibited in the second game? Gulshan Kumar Karthikeyan, I think slight niggle, but I think everything is all right now. Aryaman Tandon would be serving.
Luck of the net cord going the way of Aryaman there. So very important in every sport to have Lady Luck smiling on you at times. Couple of this time, of course, it's an unforced error on the part of Gulshan Kumar. Aryaman racing to a 4-1 lead. Gulshan needs to arrest the side, but Aryaman continuing his momentum that he had gained in the second game. Niti is continuing here. ये मौका काफ़ी देर बाद आया है गुलशन के लिए और उन्होंने डाउन द लाइन हिट किया और उसके बाद ये चेंज मिला है गुलशन कुमार इस समय सर्विस के लिए। ये स्ट्रोक थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया आर्यमन के लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कमी, एंड वो खुद भी खुश नहीं थे अपने स्ट्रोक के साथ में। एंटिसिपेट करने की कोशिश तो की लेकिन ये जजमेंट काम नहीं आई है गुलशन के। लास्ट सेकंड तक उन्होंने शटल के लैंड होने का वेट किया लेकिन फाइनली वो शटल जो है बैक लाइन से बाहर, बेस लाइन से बाहर हो गया और ये पॉइंट भी आर्यमन के अकाउंट में। 6-3 का स्कोर, 3 पॉइंट की एडवांटेज इस समय आर्यमन के लिए। शानदार वापसी की है उन्होंने सेकेंड सेट के दौरान, 21-9 से जीत हासिल की और अब कोशिश है कि इस मुकाबले में जीत दर्ज करने की। Aryaman really in attack mode, and what Gulshan was trying to just slow down that rally. And finally an unforced error on attack. There you see from Aryaman Tandon. किशोर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है कि गुलशन ने अपने ओपोनेंट के टेम्पो के, उनके पेस को जो है थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया है। उन्होंने ये भांप लिया है कि वो लगातार अटैक कर रहे हैं, काफ़ी अग्रेसिवली खेल रहे हैं और उन्हें उनके मोमेंटम को थोड़ा सा स्लो डाउन करना होगा। ये बहुत अच्छी टैक्टिक्स है, ये सही समय पे सही टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना, स्ट्रैटेजी चेंज करना, ये दिखाता है कि गुलशन को ये जीतना है मुकाबला और क्वार्टर फाइनल में बनानी है अपनी जगह। 6-5 का स्कोर, सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस। ऑल फाइनली इस सेट में बराबरी देखने को मिली है। 6-6 की बराबरी, गुलशन कुमार वर्सेस आर्यमन टंडन। ये ड्रिबल किया था नेट पे, लिफ्ट किया गुलशन ने और उसके बाद साइड लाइन से आर्यमन टंडन का ये डाउन द लाइन जो उन्होंने क्रॉस किया था वो बाहर हो गया। बैकहैंड से रिटर्न की कोशिश की थी लेकिन सफलता वहां नहीं मिली है गुलशन को।
नेक एंड नेक फाइट है इस तीसरे सेट के दौरान। What a rally that was. And really, as you very rightly said, Neeti, this is a neck and neck. It will last the distance. It will go to the last possible point that both the players would like to register in their name and win this contest. 7-all. The ding-dong battle continues. गुलशन ने जो आर्यमन के रिदम पे उनके टेम्पो को ब्रेक करने की कोशिश की है उसमें कामयाबी भी मिली है उनको और अब साथ साथ की बराबरी पर है ये सेट। तीसरा और डिसाइडिंग सेट है जो और रेस है टॉप 8 में पहुंचने की। काफी हाई सर्व किया था और ऐसे में ओपोनेंट अटैकर जब आपके सामने इतना अग्रेसिव प्लेयर हो तो उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो जाती है कि वो ऐसे हाई सर्व पे इस तरह का रिप्लाई जरूर करेंगे और वही चांस कन्वर्ट किया है क्रॉस कोर्ट आर्यमन टंडन ने। We've seen right through this match that Aryaman Tandon always quick to seize the opportunities that come his way. By nature, a very aggressive player. Goes on attack mode. And inducing that error on the part of Gulshan Kumar Kartikeya. The lift going long. Oh, quickly. That's an unforced error which would enable Gulshan Kumar to just bridge the gap. 8-9. So it's a very close third game in progress. राइट का इशारा दिया है, इन का इशारा दिया है चेयर अंपायर ने और इसके लिए अपील की कोशिश भी की थी गुलशन ने। उन्हें लगा शायद कि ये साइड लाइन से बाहर है। डाउन द लाइन स्मैश किया था आर्यमन ने, जंप किया और देखिए कैलकुलेशन, सही टाइम पर सही टेक्निक का एग्जीक्यूशन। लगातार अपील कर रहे हैं गुलशन की आउट है और अब ऐसा लगता है वो जो रिव्यू का जो सिस्टम है उसकी डिमांड यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन रिव्यू नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर जो डिसीजन है अंपायर्स का उसे ही मानना होगा और इसी के साथ 11-8 का स्कोर है। साइड चेंज और डिसाइडिंग गेम है तो इसमें आपको 11 पॉइंट्स पे जो भी पहले 11 पॉइंट्स बना ले उसके बाद आपका कोर्ट का साइड चेंज होता है ताकि आपको किसी भी चीज़ का एडवांटेज ना मिले। इंडोर कोर्ट है और आपको कोई साइड फेवर कर सकती है, ड्रिफ्ट हुआ, ड्राफ्ट हुआ, लाइट्स हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके एक्शंस में। तो डिसाइडिंग गेम है, आपको किसी भी तरीके का एडवांटेज ना मिले, इसी के लिए ये रूल ना केवल बैडमिंटन में बल्कि वॉलीबॉल में भी ऐसा ही सेम नियम है कि अगर आप डिसाइडिंग गेम में तो आपको कोर्ट साइड चेंज करना होगा उस सेट के दौरान। इंडोर कोर्ट में आपको कोई एडवांटेज ना मिले इसलिए ऑल्टरनेट साइड चेंजिंग चलती रहती है कि पहले सेट में आप जहां खेलेंगे उसके ऑपोजिट सेट में आप उसके ऑपोजिट साइड में जाएंगे आप जब आप दूसरा सेट खेलेंगे। तो काफ़ी सारी साइंस कह सकते हैं कि शोर लगती है ये सारी चीज़ें करने के लिए। एंड स्पोर्ट्स इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू प्लेयर एंड द कोचेस टुडे। You're right, so much goes behind the scenes. The support staff, you mentioned the coaches, you're the physio, you're the trainer, you have the analyst, you even have mental conditioning coaches.
Once again, long drawn out over there. And Gulshan Kumar, he knows that he needs to keep the score within manageable limits, not allow his opponent to take a big lead. If he can do that, then no reason why he can't stage a comeback. Both the players would be experiencing pressure at the moment. शॉट सर्व की कोशिश थी और उसी पर एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न, इसी का फायदा मिला है आर्यमन टंडन को। 13-9 का स्कोर। अपनी लीड को स्ट्रेच करते हुए समय आर्यमन, लेकिन नॉट अगेन। वो खुद खुश नहीं है अपने उस ऐसे अटेम्प्ट को। उन्होंने नेट प्ले की कोशिश की थी, फिनिश करना चाहते थे वहां पर। पहले शॉट सर्व किया, उसके बाद में फिनिश की कोशिश, और कामयाबी इस बार गुलशन कुमार के लिए। लंबी रैली और क्या फिनिश किया है। व्हाट अ विनर दिस टाइम। बॉडी लाइन स्मैश। लगातार डोमिनेट करना चाहते थे, लेकिन अच्छा रिटर्न आता रहा विपक्षी साइड से, और फाइनली उनको कामयाबी मिली है। अपनी लीड को स्ट्रेच किया है, 4 पॉइंट का डिफरेंस बनाए रखना है, क्योंकि ये आखिरी सेट है, ये आखिरी मौका है इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक छोटी सी भी गलती का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बाहर होना पड़ेगा क्वार्टर फाइनल की रेस से अगर आप यहां पर हार जाते हैं। 1-1 ऑल पर है दोनों ही खिलाड़ी, गुजरात के आर्यमन टंडन और दिल्ली के गुलशन कुमार। बैकहैंड से रिटर्न की कोशिश, लेकिन सीधा शटल नेट में। कितनी बार रोकेंगे। लगातार प्रहार करते रहे, प्रहार पे प्रहार करते रहे, और आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। बॉडी लाइन बैक टू बैक उन पे लगाए, और कब तक रिटर्न करते, कब तक रिटर्न करते गुलशन कुमार कार्तिकेय को। आखिरकार उन्हें घुटने टेकने पड़े आर्यमन के सामने। 15-11 का स्कोर। Well, I just get the feeling that Aryaman, until the last moment, you would see it, he thought that maybe the shuttle was going long. That wasn't big. So it's 12-15. Gulshan Kumar still playing catching up. You never know. Couple of points. Oh, look at that. Aryaman, he's not going to miss out on such chances. कैसे बचेंगे गुलशन आप इस ऐसे अटैक से, ऐसे अटेम्प्ट से जो लगातार किए हैं आर्यमन टंडन ने। पहले सेट में ये वाले आर्यमन थोड़े से मिसिंग थे, सेकंड सेट में वापस आए, और अब देखिए लगातार अटैक कर रहे हैं। उनका नॉर्मल जो बेसिक स्टाइल खेलने का है, वो एक एग्रेसिव स्टाइल है, और उन्होंने प्रूव किया है। गुलशन कुमार के काफ़ी फोरहैंड पे काफ़ी डीप था ये रिटर्न, और काफ़ी मुश्किल था कार्तिकेय के लिए। गुलशन कुमार कार्तिकेय वर्सेस आर्यमन टंडन, राउंड ऑफ 16। 1-1 ऑल है, और तीसरा और डिसाइडिंग सेट इस समय प्रगति पर। सर्विस के लिए आर्यमन टंडन, लोकल बॉय। ओह, हाफ स्मैश की कोशिश थी,
ऐसा कहते हैं कि बैडमिंटन में रैकेट के सेंटर पे अगर शटल कांटेक्ट होता है, कहाँ कांटेक्ट करता है उसका भी रिफ्लेक्शन जो है, रिएक्शन जो है आपके स्ट्रोक्स में आता है। कहीं ना कहीं जो कांटेक्ट था वो रैकेट के साथ में वो राइट टाइम पर नहीं हुआ और उसके चलते वो स्मैश जो है शॉट पड़ गया। Well, relentless attack by Aryaman Tandon, and slowly but surely on to his objective of winning the deciding game and the match. 18-13, and after a fine opening game, Gulshan Kumar Kartikeya's game falling apart, just hanging in there, just hoping that maybe a couple of points if he can get back here. Oh, this time line judge calling it out. Aryaman isn't happy, but then I think it's the line judge who is the. We need to respect the decision. Of course, the chair umpire can always overrule, but the chair umpire going with the decision of the line judge there, Neeti. शेयर अंपायर का डिसीजन कि ये पॉइंट मिलेगा गुलशन कुमार को। साइड लाइन से शटल आउट थी, एक टॉस, उसके बाद रिटर्न किया था, ये लिफ्ट और उसके बाद क्रॉस कोर्ट प्लेसमेंट की कोशिश, लेकिन साइड लाइन से शटल बाहर। ओह, काफी सारे ओकेजन्स ऐसे देखने को मिले हैं, काफी मौकों में जब सर्विस का रिटर्न जो है, रिटर्न को उन्होंने अटैक बना लिया है। बहुत बार उन्होंने ये सेम अटेम्प्ट किया और उन्हें कामयाबी भी मिली है। 19-14, 2 पॉइंट्स चाहिए सिर्फ जीत के लिए, लेकिन अभी हार नहीं मानी है गुलशन कुमार कार्तिकेय ने। ये क्रॉस कोर्ट एफर्ट और कामयाब हुए हैं इस बार इस पॉइंट को अपने नाम करने के लिए गुलशन कुमार कार्तिकेय। कब तक बचते, आखिरकार फंस गए और ये है आखिरी पॉइंट, मैच पॉइंट यहाँ पर। 20-15 का स्कोर, सिर्फ 1 पॉइंट और आर्यमन पहुंच जाएंगे टॉप 8 में क्वार्टर फाइनल्स मुकाबलों में। किसी मैजिक की जरूरत है इस समय गुलशन कुमार को, यहाँ पे किसी मिरेकल की जरूरत है। Right, Neeti. So, and Aryaman gives one opportunity. He had to save 5 match points, but he's managed to save one of it. But still, 4 match point opportunities for his opponent, Aryaman Tandon. Yeah, seems to be in a hurry. A couple of unforced errors isn't helping his cause. Gulshan won't be complaining. Aryaman Tandon very aggressive in his stroke play. Well, that's it. Finishing off in style, and the local favorite moves into the quarterfinals. Aryaman Tandon of Gujarat defeating Gulshan Kumar Kartikeya in 3 hard-fought games, 21-13, 9-21 and 21-17. 13-21, 21-9 and 21-17. What a fine match we witnessed. What a finish that was. इस मैच को जबरदस्त तरीके से रैप किया है आर्यमन ने। पहला सेट बेशक उन्होंने गवा दिया, लेकिन शानदार वापसी की सेकंड सेट को पूरी तरह से डोमिनेट किया 21-9 के स्कोर के साथ और आखिरकार जीत हासिल की। इस तीसरे सेट को भी जीतकर 2-1 के सेट स्कोर से उन्होंने शिकस्त दी
कार्तिकेय गुलशन कुमार को 21-13, उसके बाद 9-21, ये 21-9 इन फेवर ऑफ आर्यमन टंडन सेकेंड सेट, और उसके बाद उन्होंने 21-17 से तीसरा सेट भी जीत लिया और जगह पक्की कर ली है अब अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए। कार्तिकेय गुलशन कुमार को हार का सामना करना पड़ा। काफी खुश होंगे ये बच्चे जब उन्होंने गुजरात के यानी लोकल बॉय को जीतते देखा होगा। इतनी नजदीक से शायद इन्हें कभी मौका मिला हो नेशनल चैंपियंस को इतने करीब से देखने का, और ये एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा आने वाली पीढ़ी के लिए कि जब आपको ऐसे ओकेजन्स पे नेशनल गेम्स जिनका बेसब्री से इंतजार था, लोगों को 7 साल से these athletes were waiting, not only athletes, everyone was waiting for these games to happen, and finally it is happening in Gujarat. ये है हाइलाइट्स, लगातार डोमिनेट किया है उन्होंने तीसरे सेट के दौरान आर्यमन टंडन ने। काफ़ी ओकेजन्स पे काफ़ी फॉर्चुनेट भी रहे और इसी के चलते उनको जीत मिली है। 21-17 से उन्होंने तीसरा सेट अपने नाम किया और क्वार्टर फाइनल्स में नज़र आएंगे। अब अपनी चुनौती रखेंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। ज़रूरी था गुजरात के लिए कि एक लोकल बॉय क्वार्टर फाइनल एनकाउंटर में नज़र आए। इस कोर्ट नंबर 1 पे ये था आज के दिन का चौथा मुकाबला। इससे पहले 3 विमेन सिंगल्स के मुकाबले खेले गए और ये मेन सिंगल्स का पहला मुकाबला था कोर्ट नंबर 1 पे, जिसका प्रसारण आपने देखा है सूरत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम से। इंडिविजुअल इवेंट्स चल रहे हैं और ये थी कुछ खास रैलीज जिस पे कंप्लीटली डोमिनेट करते नजर आए आर्यमन टंडन। दिल्ली के गुलशन कुमार को मौका नहीं दिया उन्होंने। गुलशन ने कोशिश भी की थी कि वो पेस डाउन कर सके आर्यमन का, लेकिन कामयाबी कुछ हद तक मिली, उसके बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गुजरात के आर्यमन टंडन रेड एंड ब्लैक जर्सी के कॉम्बिनेशन में, वहीं गुलशन कुमार येलो एंड ब्लू। शुरुआत काफ़ी अच्छी की थी गुलशन ने, लेकिन शुरुआत अच्छी करने से ज़्यादा कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि अंत अच्छा हो, और वो अंत अच्छा था आर्यमन टंडन के लिए। गुजरात और एक स्टाइलिश फिनिश, एक स्ट्रॉन्ग फिनिश किया है गुजरात के आर्यमन टंडन ने। Gujarat players
Dhruv Kumar Rawal and Aisha Gandhi, the mixed doubles pair. We're taking on Hariharan and Nardana, representing Tamil Nadu. Well, the mixed doubles about to get underway. Once again, a pleasure to welcome Sunita Sharma, who joins me here in the comm box. Welcome धन्यवाद back. किशोर। और आज इंडिविजुअल इवेंट्स के अंतर्गत ये पहला डबल्स का मुकाबला देखने को मिलेगा और ये मिक्स डबल्स का मुकाबला जिसमें कि मुकाबला होना है हरिहरन और नरदाना की जोड़ी के साथ मुकाबला करेंगे ध्रुव कुमार और आयशा गांधी। पहचान के लिए बता दूं कि इस समय हमारे पिक्चर फ्रेम में है गुजरात के ध्रुव कुमार और आयशा गांधी जो ब्लू कलर की शॉर्ट्स में हैं, जबकि दूसरी तरफ है हरिहरन और नरदाना। ये मिक्स डबल्स का मुकाबला हरिहरन तेलंगाना के हैं और नरदाना तमिलनाडु से। और ये खूबसूरत शुरुआत फोर कोर्ट में प्लेस किया और ये अंक मिला गुजरात को। एक की बराबरी और इस पर कामयाबी मिली ध्रुव कुमार को। सर्विस आयशा गांधी की। अच्छी जजमेंट, सही जजमेंट। हरिहरन नरदाना की जोड़ी समय 3 पर, ध्रुव और आयशा की जोड़ी 2 अंकों पर। सर्विस गांधी की और आयशा गांधी ने इस बार अच्छा रिस्ट वर्क दिखाया, कोर्ट के कॉर्नर में बॉल को प्लेस किया और 1 अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए, गुजरात के लिए। जाहिर है गुजरात के खिलाड़ी का मनोबल ऊंचा है और लोकल क्राउड का उनके साथ मिल रहा है और ये वजह है कि शुरुआत, मैं कहूँगी शुरुआत से ही हावी होकर खेलना चाहेंगी गुजरात की टीम। Very fast action here. And as far as this pair is concerned, the pair from Gujarat giving a good account of themselves, playing, of course they have got home support as well. So we had some quick rallies, as of course is what happens in doubles, 4-all.
This time, unforced error. His intention was all right, Dhruv Raval. That's what the coach also mentioned, just to keep your calm. Nardana. That was powerfully smashed. And quite not able to control that return there. पावरफुल स्मैश, कोई जवाब नहीं है गुजरात के पास। एक बार फिर उसी अंदाज में उसी पार के साथ सेंटर लाइन से डायगोनल स्मैश किया। बहुत फास्ट रफ्तार है इस गेम की, देखने का गजब का मैच ये डबल्स का, मिक्स डबल्स का, हरिहरन और नरदाना की जोड़ी और ध्रुव कुमार और आयशा की जोड़ी के बीच। और इस बार बैककोर्ट से स्मैश किया जंप के साथ, अच्छा कोऑर्डिनेशन। ये देखिए बैककोर्ट से किस तरह से हरिहरन ने स्मैश किया था और एक अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए। 9-6 स्कोर फिलहाल। और इस बार ब्यूटीफुल प्लेसमेंट, दाहिनी तरफ प्लेस क्रिएट किया और वहीं पर प्लेस किया। 10-6, 4 अंकों की बढ़त इस समय। मिक्स डबल्स का मुकाबला इंडिविजुअल इवेंट्स के अंतर्गत 36वें राष्ट्रीय खेलों में। और ये रावल गुजरात के, ये देखिए रावल ने किस तरह से अंक अर्जित किया था अपनी टीम के लिए। और ये हाफ टाइम स्कोर फिलहाल 5 अंकों से पीछे है गुजरात की टीम। So that 5 points separating the two pairs, and right from the start it has been Hariharan and Nardana who looked very dominating. Dhruv Raval and Aisha Gandhi still finding their bearings. The youngsters, of course, they will learn as they go along. This pair looks to be the more experienced. And we had very short rallies, as often happens, Sunita, in this in doubles, mixed doubles. Action is so fast-paced. बिल्कुल ठीक है, साइड साइड की फॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छा तालमेल है। देखिए कोई मौका नहीं वहां पर, नेट पे खेला और वहीं पर पार के साथ उन्होंने ड्रॉप किया। तेज रफ्तार खेल और ये इन, गलत निर्णय। फिलहाल सर्विस गुजरात की, ध्रुव कुमार। और इस बार अनफोर्स एरर, हरिहरन और नरदाना की जोड़ी 12 पर, ध्रुव और आयशा 8 अंकों पे। सर्विस भी कई बार स्ट्रोक का काम करती है किशोर। Yes, Sunita, sometimes now this pair coming back very strongly. They had the Gujarat pair after the mid-game interval did well to reduce the lead couple of points, but once again it's their opponents who are calling the shots. 3 points on the trot would mean that they have reached 14-9 here. Hariharan and Nardana. This time judging it very well was Ayesha. 10-14. Can they make a fight of this one here? Oh, what a rally. That was relentless attack.
And these two combining much better, Hariharan and Narmada. Maybe in an attempt to finish off points quickly. 15-11. They're just upping the pace, Sunita. और माइंड गेम भी होता है इसमें बैडमिंटन में। और एक बार देखिए तेज रफ्तार है, टाइम नहीं है। 1 2 3 चौथी शॉट में गेम को खत्म किया और 5 अंकों से आगे बढ़ाया अपनी टीम को हरिहरन और नरदाना ने। बहुत ही तेज रफ्तार खेल जोड़ी है ध्रुव कुमार और आयशा की, और दूसरी हरिहरन और नरदाना की। मिक्स डबल्स का मुकाबला। और ये सही निर्णय, आउट, अनफोर्स एरर, और ये एक आसान अंक मिला यहाँ सही जजमेंट के माध्यम से हरिहरन और नरदाना की जोड़ी को। सर्विस हरिहरन, शॉर्ट सर्व। और देखिए कितना फास्ट है, 4 कोर्ट में मैक्सिमम खेल रहे हैं, मौका नहीं है वहां पे क्योंकि नेट प्ले इतना शानदार है दोनों टीमों का, दोनों खिलाड़ियों का। मात्र 4 अंकों का फासला इस समय ध्रुव कुमार और आयशा की जोड़ी 13 पर और 17 पर हरिहरन और नरदाना। In fact, they make it 18 with that last point. What's happening is both Hariharan and Nardana, they maybe play more together and really combining superbly as a pair. Doubles is so much about how you combine with your partner. You nearly, almost literally you need to think on your feet because action happens so fast. You not only have to look at the opponent, you also need to know what your partner is going to do. और ये देखिए किस तरह से फोर्स एरर करवाई, कोई समय नहीं दिया वहां पे, फास्ट रिटर्न, और मात्र 2 अंकों की जरूरत इस समय नरदाना और हरिहरन की जोड़ी को। और ये नेट में दे बैठे, अनफोर्स एरर, और एक मौका मिला है ध्रुव आयशा की जोड़ी को यहाँ पर इस अंतर को कम करने का। देखना यह है से पुनः पाते हैं या नहीं। और गेम पॉइंट पर पहुंची है हरिहरन और नरदाना की जोड़ी। मात्र 1 अंक की जरूरत इस समय इस गेम को जीतने के लिए। बहुत तेज रफ्तार खेल है। Well, it's all over. The first game going to the pair of Hariharan and Nardana, and winning it very comfortably, 21-14. And the Gujarat pair of Dhruv Kumar Rawal, the young pair, I must say, of Ayesha Gandhi and Aisha Gandhi, didn't look that comfortable, didn't combine as well as their opponents, Hariharan and Nardana. But it happens, Sunita, it's a learning experience for these youngsters from Gujarat. किशोर, सबसे खास बात इस गेम की ये रही, इसमें कोई भी लंबी रैली देखने को नहीं मिली। जो ज़्यादातर खेल था नेट के करीब खेला गया, और यही होता है डबल्स में। साइड बाय साइड फॉर्मेशन पे नॉर्मली खेलते हैं और इतना फास्ट पेस पर गेम खेलते हैं कि पता ही नहीं चलता। ड्यूरेशन की बात करें तो बहुत जल्दी ख़त्म करने में कामयाबी मिली इस पहले गेम को। देखना यह है कि दूसरे गेम में वापसी होती है गुजरात की जोड़ी की या नहीं। गुजरात की तरफ से हैं ध्रुव कुमार और आयशा गांधी, और दूसरी तरफ हरिहरन और नरदाना। पहले गेम का स्कोर है 21-14, जिसे जीता हरिहरन और नरदाना की जोड़ी ने। और देखिए काफ़ी संतोष दिखाई दे रहा है इस समय कोचेस के चेहरे पर, और इस तरह होता भी है जब भी आपकी टीम अगर जीत रही हो तो जाहिर है उसी मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जाती है कि उसी टेम्परामेंट से, उसी स्पीड के साथ खेलकर दूसरा गेम खेलकर इस गेम को ख़त्म करें। और देखना ये कि दूसरे गेम में भी स्पीड को बनाने में कामयाबी मिलती है या नहीं। Well, this is how quick rallies have been the order of the day. Doubles, of course, is all about fleet-footness. It's all about things happening so very fast. Action happening very fast.
And this time, in the second game, the moment an opportunity presented itself, Rawal was quick to seize on. So maybe that pep talk from the coach seems to have helped Gujarat in the second game. Rawal and Gandhi leading 1-love. Quickly coming back, Hariharan and Nardana makes it 1-all here. They won the opening game very comfortably, 21-14. अच्छी एंटिसिपेशन, सही जजमेंट और एक अंक। ध्रुव का अच्छा एंटिसिपेशन, सही निर्णय। और ये अच्छा नेट प्ले, अंक मिला नरदाना को। 2-2 की बराबरी पर। गजब का मुकाबला, संघर्षपूर्ण मुकाबला, शुरू से ही डोमिनेट करने की कोशिश की है हरिहरन और नरदाना की जोड़ी ने, लेकिन फिलहाल स्कोर 2-2 की बराबरी पर। पिक्चर फ्रेम में ध्रुव कुमार और आयशा। हरिहरन की सर्विस। बहुत ही शानदार रिटर्न किया और नेट में पहुंचाया। अनफोर्स एरर, ये देखिए बैककोर्ट से कितना अच्छा एक्शन था, लेकिन नेट में दे बैठे। और इस बार हरिहरन अनफोर्स एरर, और एक मौका मिला है यहां गुजरात की जोड़ी को। और ये दाईं तरफ आए थे, स्ट्रेट डाउन द लाइन स्मैश करना चाहते थे, लेकिन अनफोर्स एरर। Sunita, what is happening actually is, as far as the Gujarat pair is concerned, Dhruv Kumar and Ayesha Gandhi, they have played a much more attacking game. They have combined much better in the second game, with the result that the scoreline reads 4-all at the moment, 5-4 rather. Oh, that's attack at its very best from Hariharan. Well, look at that. Dhruv coming into his own. They have played exceptionally well in the second game. Who would have thought that after losing that opening game quite tamely, Sunita, they would come back so strongly. Dhruv and Ayesha. दोनों टीमें 5-5 की बराबरी पर। और इस पर चूके ध्रुव कुमार रैकेट पर नहीं ले पाए। रैकेट की किस जगह पर शटल आती है, इस पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सी शॉट दे पाएंगे। बहुत तेज रफ्तार खेल। हरिहरन और नरदाना 6 पर, ध्रुव कुमार और आयशा 5 पर। ये जोड़ी है नरदाना और इस बार शानदार शॉट नरदाना का, कोई मौका नहीं था वहां। ये देखिए आयशा गांधी, एक मौका है बराबरी से 1 अंक ऊपर होने का। और इस बार आयशा गांधी को कामयाबी मिली, एंगुलर शॉट निकाला नेट के बहुत करीब से, और कोई मौका नहीं था वो रिटर्न का। और एक बार 1 अंक से आगे ध्रुव और आयशा की जोड़ी। 7-6 फिलहाल स्कोर, और सर्विस आयशा की। अच्छा रिटर्न सर्विस का। इस तरह के शॉट्स कम देखने को मिलते हैं, और विशेष रूप से डबल्स के मैच में। So the Hariharan and Nardana once again
doing well, trying to stage a comeback here, just going past for a moment. Dhruv and Ayesha for the first time were in the lead by a solitary point. Oh, Dhruv once again showing how well he can play. First game, of course, they looked a bit tentative, but here in the second game, the Gujarat pair of Dhruv and Ayesha coming into their own. They are up against a pair who've been playing together for quite some time, Hariharan and Nardana. 8-all. Very close contest in the second game, unlike the first game. And that's a bit of a misfortune as far as Gujarat is concerned. The serve is going short. And Hariharan and Nardana now almost there as far as the mid-game interval is concerned. 10-8. Well, that's it, finishing off in style, cross court. And at the mid-game interval, it's the pair of Hariharan and Nardana who go into the lead at 11-8. One must say in the second game, some invaluable tips being passed on by former Indian player over there. Shinde and Gandhi and Raval, that is Dhruv and Ayesha, have done very well in the second game, has given a much better account of themselves in the second game. They looked much more positive. And this is how the last point before the interval came about, which took Hariharan and Nardana to 11. 3 पॉइंट से आगे इस दूसरे गेम में भी हरिहरन और नरदाना की जोड़ी, जबकि पहला गेम 21-14 की कंफर्टेबल लीड के साथ जीता था। और ये आउट, एक मौका मिला है आयशा की सर्विस गुजरात को। बहुत वेरिएशन के साथ खेल रहे हैं हरिहरन और नरदाना। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों का, अच्छी अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ अनफोर्स एरर, हरिहरन ने गलती की और अंक मिला गुजरात को। अंतर मात्र 2 अंकों का है सर्विस गुजरात की। और इस बार आयशा गांधी नहीं रिसीव कर पाई। थोड़े से भी अगर आप चूकते हैं, थोड़ा सा भी लेट होते हैं इस तेज रफ्तार खेल में, उसका खामियाजा यकीनन आपको भुगतना पड़ता है। सर्विस आयशा गांधी की। साइड बाय साइड फॉर्मेशन और नेट के पास आए, ड्रॉप किया। एक बार फिर देखिए, रावल नेट के बहुत करीब थे और यही गलती हुई थी उनसे। रावल की सर्विस। ओ, क्या रफ्तार है, कोई मौका नहीं वहां संभलने का। बहुत तेज रफ्तार बैडमिंटन यहाँ 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में। 15-12 once again, Hariharan and Nardana coming into their own. There was a period 15-13 rather. And doing well, getting a quick point there. Bridging the gap, the Gujarat pair of Dhruv Raval and Ayesha Gandhi. Hariharan and Nardana. They have been tested in the second game, though still it is
Haryana and Nardana, who have the upper hand ever so slightly. 16-14. Oh, what a good cross-court smash that was from Nardana. 17-14. Just when it was required, gaining momentum here. Quickly becomes 18-14 now. इस मैच में बने रहने के लिए ये गेम बहुत ही ज़रूरी है जीतना इस समय। आयशा और ध्रुव की जोड़ी के लिए अंतर बड़ा है, मात्र 2 अंकों की ज़रूरत इस गेम को जीतने के लिए, इस मैच को जीतने के लिए। हरिहरन की सर्विस और ये हाफ स्मैश और गेम पॉइंट पर पहुंची है, मैच पॉइंट पर पहुंची है हरिहरन और दाना की जोड़ी। मात्र 1 अंक की जरूरत। 20-14। देखना ये इसी को कन्वर्ट कर पाते हैं या एक और मौका मिलेगा यहाँ। लेकिन नरदाना ने इस मौके को भुनाया और इस गेम के साथ साथ इस मैच को भी जिताया। स्कोर एक बार फिर वही रहा, 21-14, 21-14। ये देखिए इस मैच के कुछ महत्वपूर्ण अंश किस तरह से जीता था। बहुत तेज रफ्तार रहा, कुल मिलाकर बहुत फास्ट पेस का गेम था और बहुत तेजी से जीता नरदाना और हरिहरन की जोड़ी ने। Yes, you're right, Sunita. Hariharan and Nardana winning comfortably, even though they were tested to a certain extent in that second game. But finally, when it mattered, they just accelerated. That's the pair in front, just following the umpire there. It's Krishna Veni, the pair of Hariharan and Nardana, who got the better of the young Gujarat pair of Dhruv Rawal and Ayesha Gandhi. And identical scoreline there, 21-14, 21-14. To move into the next round. This, of course, was the mixed doubles quarterfinals, which would mean that they have moved into the semi-finals of the badminton events at the 36th National Games here in Gujarat. आज मुझे मिला भी नहीं, मैं देखता हूँ यार वो नीचे ही रहते हैं, वो जो वेन्यू में। Check, mic testing. 1 2 3 4 5 check, mic testing. Check. 1 2 3 4 5 6 7 8 check. कल ना हमने एग्जैक्ट 50 नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, सेमीज भी खेलेंगे। हेलो माइक टेस्टिंग। सुबह खेलेंगे, सेमीज भी होगा। तो परसों सिर्फ फाइनल्स है? हाँ, परसों सिर्फ फाइनल्स है। ये मोस्टली चैनल है। कोर्ट 1 में मेरे ख्याल से ना आज तो 10 थे ना, कल 6 या 7 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अब ना कमलेश एक काम करो, उनको 2 मैचेस करना पड़ेगा। साबरमती से साहस लो, चलो हमको आने तो दो। हाँ ऐसा नहीं है, फिर वैसा रोस्टर बना दो ना, तो मालूम तो बढ़ जाए। नहीं, ये कमलेश बोल रहे थे, मेरे अच्छी फ्रेंड है, वो इंडियन ऑयल में ही है,
But ऐसा नहीं होता है ना. But मतलब you can't pick and choose games. She's a former national champion. She's an international player. All agreed. She can't. When you're part of the commentary team, you can't. Even Gavaskar भी नहीं बोलता मैं यही करूँगा वही करूँगा. जो डायरेक्टर बोलता है, oh, the director has to be firm. कोई भी टेलीविजन इसमें डायरेक्टर इज द बॉस. चलो ये चालू कर. हाँ. Well, we have women's doubles coming up. Once again, we have the Gujarat pair of Shannon Christian and Dipti Kuti. And they are up against the Kerala pair of Mehreen Riza and Arti Sara Sunil. The Kerala versus Gujarat. Women's doubles quarterfinals. On center court, on court number 1. Left side, we have the Kerala pair practicing. Mehreen and Aarti. And then you have the Gujarat pair of Dipti and Shannon. Doubles action on court number 1 in the form of women's doubles quarterfinal. There you see girl who just went to the other side, of course, was Aarti Sara Sunil, who is partnering Mehreen Riza. That's the Kerala pair. And they are up against the Gujarat pair of Shannon Christian and Dipti Kuti. Gujarat players having done well. We saw in an earlier match Aryaman Tandon of Gujarat putting across Gulshan Kumar Karthike in the men's singles. Then we had mixed doubles in which, of course, it was the Gujarat pair, the young, inexperienced pair going down. But here, once again, you have the local favorites. There they are, getting ready to serve to the Kerala pair of Aarti and Mehreen. The players being introduced on court. The umpire calls play.
Really fast-paced action. First point going the way of Kerala. Going the way of Aarti and Mehreen. विमेंस डबल्स का ये मुकाबला और ये अंक मिला रीजा को। रीजा जो कि केरल के खिलाड़ी है, केरल की टीम है मेहरीन, रीजा और आरती सुनील की। और ये निर्णय लिया, ये देखिए किस तरह से निर्णय लिया जाता है। कई बार सर को नीचे लाते हुए देखते हैं कि शटल कहाँ जा रही है, और कई बार इस तरह का निर्णय में जोखिम भी होता है। फिलहाल उसका फायदा मिला, एक अंक मिला गुजरात को। गुजरात की शनन और दीप्ति। बहुत तेज रफ्तार खेल। विमेंस डबल्स का ये पहला मुकाबला 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत केरल और गुजरात के बीच। ये है केरल की टीम और दोनों टीमें फिलहाल इस पहले गेम में 2-2 की बराबरी पर। केरल के सुनील और रीजा, और दूसरी तरफ हैं दीप्ति और शनन। ये है गुजरात की टीम वहाँ पिक्चर फ्रेम में, और ये शॉट सर्व किया। शटल से बाहर, हालांकि झुकी, कोशिश जरूर करी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस तरह के जो हाफ स्मैशेस होते हैं बहुत फास्ट आते हैं और उसकी तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है, एंटिसिपेट करना पड़ता है। लंबी रैली, लेकिन चूंकि रीजा फोकस नहीं कर पाई और इसी गलती का इंतजार था। ये देखिए कितनी लंबी रैली थी। यहाँ बाएं हाथ की खिलाड़ी रीजा गलती कर बैठी और अंक मिला गुजरात को। सर्विस कुट्टी की। ये देखिए कितना तेज रफ्तार है, बहुत फास्ट स्पीड पर अंक मिलते हैं, और ये फिलहाल कामयाबी मिली है यहाँ पर केरल को। 4-3 का स्कोर। रीजा की सर्विस, और ये गलती की, ये सोचकर छोड़ दिया कि बाहर होगी, लेकिन मिस जजमेंट, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। Sunita, by the evidence of what one has seen thus far, these two pairs very little to choose between the two combinations, and both the pairs have done a few unforced errors. Does very well. What good placement that was there by Sara, by Aarti, combining very well with Mehreen. And they go on to the lead now at 6-5.
Aarti and Riza once again. Error on the part of the Gujarat girls. 7-5. Well, this time judging it very well. Good judgment on the part of the Kerala girls. And move into an 8-5 lead here. Look at that. Now they have started up. It wasn't a very confident start. In fact, both the pairs were just testing each other out. Now the Kerala pair of Aarti and Mehreen coming into their own. Getting a few points on the trot. Now leading 9-5. धीरे धीरे खेल की रफ्तार में वृद्धि जरूर हुई देखने को मिली है और ये सर्विस और इस बार कामयाबी मिली केरल को। केरल की सुनील और रीजा शर्ट नेम है जिसे कि हम बुला रहे हैं महरीन और आरती। फिलहाल 5 अंकों का अंतर, अच्छा मार्जिन, तेज रफ्तार बैडमिंटन। लंबी रैली लेकिन अंत में नियंत्रण नहीं रख पाई रीजा, गलती की, नेट हुआ, नेट फॉल्ट के साथ ये अंक मिला, जाहिर है गुजरात को। कुट्टी की सर्विस, परामर्श करते हैं सर्विस से पहले। और इस बार हाफ स्मैश शॉर्ट सर्विस लाइन के पास, बहुत ही पावरफुल स्मैश, टेकफुल स्मैश, और मौका है इस समय दीप्ति के पास कुछ कर दिखाने का। और एक बार फिर उसी अंदाज में सेंटर लाइन पे आके स्मैश किया। ये देखिए किस तरह से अंक मिला था और सराहना करनी होगी। अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड, अंतर को कम किया। एक मौका है इस अंतर को और कम करने का शेनन और दीप्ति के पास। Shannon and Dipti, Sunita playing very well, combining well. They looked a bit out of sorts, but now they're coming into their own. This is developing into a good rally, yes, and it concludes with finally Aarti and Mehreen going into the mid-game break with a lead of 11-8. So 11-8 for the Kerala pair. They're up against a young pair from Gujarat, Shannon and Dipti. किशोर, आपने एक चीज़ देखी होगी कि केरल की जो महरीन और आरती हैं वो हर कॉर्नर को, पूरे कोर्ट को इस्तेमाल करे, दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ खिलाती हैं, तो उसी से गलती करवाती है। जैसा कि आपने कहा, एक फोर्स एरर होती है, एक अनफोर्स एरर होती है, कई बार नेट पर इनवाइट करते हैं, पीछे जगह बन जाती है, तो इस तरह की गलतियां करवाने में भी काफ़ी महारत हासिल है केरल की टीम के पास। अब देखना यह है कि वापसी के बाद किस तरह का टेम्परामेंट देखने को मिलता है। फिलहाल 3 अंकों से आगे केरल की टीम। अनफोर्स एरर, इसी का इंतजार था केरल को। ये देखिए कहां दे बैठी। और इस बार नेट फॉल्ट,
2 अंक लगातार अर्जित किए केरल ने। आरती और महरीन के बीच अच्छा तालमेल, अच्छी अंडरस्टैंडिंग। बाएं हाथ की रीजा। लंबी रैली, ये पहली इतनी लंबी रैली देखने को मिली इस मैच के दौरान और अंततः कामयाबी मिली इसमें केरल को। ये देखिए नेट फॉल्ट हुआ और एक और अंक अर्जित किया। इस सेकंड हाफ में लगातार 3 अंक अर्जित किए हैं केरल की महरीन और आरती की जोड़ी ने। Yes, once again, Marine and Aarti now finding the angles more frequently than in the first half of this opening game. An unforced error would just allow Dipti and Shannon to just bridge the gap. 9-15. Quick work there. Shannon and Dipti slightly inexperienced compared to their opponents. Aarti and Riza now building up a good lead here. 17-9 until the mid-game break. It was almost going neck and neck. Now the Kerala pair just pulling away. मात्र 4 अंकों की जरूरत फिलहाल मौका है गुजरात के पास। एक के बाद एक परफेक्ट शॉट खेले और कामयाबी मिली। ये देखिए अच्छी बैडमिंटन देखने को मिल रही है, अच्छी शॉट्स देखने को मिल रही हैं यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में और 6 अंकों का कंफर्टेबल मार्जिन इस समय आरती और महरीन के खाते में। इस बार अनफोर्स एरर और इस तरह की गलतियों से बचना होगा। 18 आरती महरीन की जोड़ी का स्कोर और शनन और दीप्ति की जोड़ी 11 पर। ये देखिए कितना संतोष दिखाई देता है जब इस तरह की गलतियां होती हैं और ये देखिए कितनी अच्छी जजमेंट। आउट। मात्र 2 अंकों की जरूरत। मौका है इस समय गुजरात के पास। ये नेट फॉल्ट हुआ, कोशिश थी आरती सुनील की लेकिन लकी पॉइंट कहेंगे इसको। बहुत वेरिएशन का गेम खेला लेकिन अंत में गलती हुई आरती सुनील से, नेट में खेल बैठी। ये देखिए कितनी लंबी रैली थी और यहाँ नेट फॉल्ट हुआ। What a superb placement that was from Mehreen. Very, very deceptive return. And they are on game point. The Kerala pair of Aarti Sara and Mehreen Riza.
still having as many as 6 game points in hand. And Dipti and Shaheen script a comeback here. Well, that's not to be. It's the Kerala pair of Aarti Sara Sunil and Mehreen Riza who wrap up that opening game quite comfortably. 21-14. तो एक बड़े अंतर के साथ ये पहला गेम केरल ने 21-14 से जीत लिया है और कुल मिलाकर बहुत तेज रफ्तार बैडमिंटन देखने को मिली यहाँ आज इस पहले विमेंस डबल्स के इस मुकाबले में, जबकि मैं आमना सामना कर रहे हैं शैनन क्रिश्चियन और डिप्टी कीर्ति और दूसरी तरफ है मेहरीन रीजा और आरती सारा सुनील की जोड़ी। गजब का मुकाबला रहा, हालांकि काफ़ी मौके मिले मैं समझती हूँ गुजरात को, और अनफोर्स एरर बैडमिंटन में काफ़ी महंगी साबित होती हैं। ये देखिए इस मैच के कुछ प्रमुख अंश, किस तरह से केरल की जोड़ी को कामयाबी मिली थी इस पहले गेम में। ये बाएं हाथ की रीजा और ये इस तरह से अंतिम अंक अर्जित किया था, लास्ट पॉइंट मिला था केरल की जोड़ी शैनन और दीप्ति को। ये हमारे पिक्चर फ्रेम में केरल की टीम, बाएं हाथ की खिलाड़ी हैं रीजा मेहरीन। किशोर, हर खेल में जो लेफ्ट हैंडर होता है, लेफ्ट हैंड चाहे वो क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो या बैडमिंटन हो, उसको एडवांटेज होता है और कॉम्बिनेशन हमेशा बेहतर साबित होता है। तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन इस समय देखने को मिल रहा है केरल के पेयर में। You're right, especially maybe in a game like table tennis, it is, I would say, double advantage if you are a left hand right hand pair, because you need to, especially in doubles, it's like alternately you have to receive. And obviously not only they have an advantage, they are much more graceful. Really very difficult to explain this, but left-handers, whatever they do, the strokes that maybe in a game like cricket also, they look more graceful. So it's one of those things very difficult to explain. Second game getting underway, and Aarti quickly into her elements, getting a point there. Two love quickly in the second game, the Kerala pair of Aarti and Mehreen. Becomes 3-0. Relentless attack at the moment, Sunita. तीन 0 स्कोर दूसरे गेम में। सर्विस बाएं हाथ की खिलाड़ी रीजा, और ये एंगुलर शॉट, ये देखिए किस तरह से एंगल निकाला था, इसके बाद स्ट्रेट एंगल निकालने की कोशिश थी लेकिन नेट फॉल्ट हुआ। एंगुलर शॉट के लिए बहुत परफेक्शन की ज़रूरत होती है और 4 अंक पर स्कोर पहुंचा है। सर्विस केरल की, Next match on court 3, women's singles quarterfinals. Malvika Bansod, Maharashtra, Ashi Rawat, Delhi. अच्छे अटैक्स, अच्छा डिफेंस और एक अंक मिला इस आक्रमण के बाद, इस अटैक के बाद। ये देखिए कितना खूबसूरत अटैक था ये, जिसे रीजा नियंत्रण नहीं रख पाई और अंक मिला शेनन और दीप्ति की जोड़ी को।
लंबी रैली, इस गेम की पहली लंबी रैली देखने को मिली। सर्विस गुजरात की और शॉर्ट सर्व। कई बार आपका सर्व ही एक, ये देखिए शॉर्ट सर्विस, थोड़ा सा भी मौका हो तो उसे उभराने की कोशिश होती है, कोई मौका नहीं था। इतना फास्ट रिटर्न था रीजा का यहाँ पर। नेट में थमा बैठी महरीन, ये देखिए, और ये दोनों बराबर सक्षम थी, कोशिश दोनों की थी। फिलहाल 2 अंकों से आगे आरती और महरीन की जोड़ी। सर्विस केरल की, केरल 6 गुजरात 3। और इस बार पीछे जगह थी, ठीक वहीं पर प्लेस किया शटल को रीजा ने, कोई गलती नहीं की और एक अच्छी सूझबूझ का प्रदर्शन दिया, अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड का नमूना पेश किया और अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए। 7-3 का स्कोर। अच्छा तालमेल, अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत तेज रफ्तार बैडमिंटन यहाँ देखने को मिल रही है 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत। सर्विस केरल की, केरल की आरती। आउट, अच्छी एंटिसिपेशन, सही निर्णय और अंक भी मिला इसी के जरिए महरीन और आरती की जोड़ी को। सर्विस केरल की, अच्छा कॉम्बिनेशन, एक बाएं हाथ की और एक दाएं हाथ के खिलाड़ी केरल में, और इसी का फायदा भी मिल रहा है। ये देखिए बाएं हाथ की रीजा, एक बार फिर और इस बार कुट्टी के बॉडी लाइन स्मैश था जिसका कोई जवाब नहीं था, डिफेंस संभव नहीं था। यहाँ पे देखिए कितना पावरफुल स्मैश, कितना सधा हुआ स्मैश था ये। कंफर्टेबल लीड इस समय आरती और महरीन के खाते में। किशोर, This is a very comfortable position after winning that opening game also, that went their way. 21-14 the Kerala pair. Taking a handy lead here. 11-4. It will take some doing from the young Gujarat pair of Shannon and Dipti to stage a comeback here. By no means impossible, but they need to really, maybe the coach really giving his inputs, strategizing, but it's for the players to execute it on the field of play. 11-4. Second game after the mid-game interval. Marine serving. Well, good beginning. 5-11 here. छह अंकों से आगे इस समय केरल की जोड़ी आरती और महरीन की जोड़ी। स्कोर है 5-11। और इस बार कुट्टी नाकामयाब रही। डाउन द लाइन स्मैश था ये। देखिए डाउन द लाइन स्मैश, कोई संभावना नहीं थी वहां पे, और इस अंतर को बढ़ाने में भी कामयाबी मिली आरती और महरीन की जोड़ी को। फिलहाल स्कोर है 12-5। सर्विस
सर्विस गुजरात की। Sunita, this is an opportunity. If they can somehow get a few points, or they get one of those, move on to 8-12, because it's a must-win game. If they win this one, the second one, then they can well take this match into the decider. Easier said than done. सही कहा आपने। और इस बार बाएं हाथ की खिलाड़ी रीजा को कामयाबी मिली। और जैसा हम बात कर रहे थे, ये अंतर कम हुआ है। सेकंड हाफ में बेहतर खेल प्रदर्शन रहा है गुजरात की टीम का, अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ वापसी हुई है। हाफ टाइम स्कोर था 11-4। तो सेकंड हाफ की अगर हम बात करें, 5 अंक अर्जित किए हैं इस दौरान, जबकि मात्र 2 अंक अर्जित किए हैं केरल की टीम ने। Getting the service back at 13-9. Oh, and Marine is that cardinal error of losing a serve. Gujarat pair won't be complaining. 10-13. Aarti, Sara, Sunil and Marine Riza. The more experience of the two pairs. The young combination for Gujarat, Shannon and Dipti. And wonderfully well done. That's a cross-court winner over there by Marine Riza. And doing very well to move on to 15-11. The women's doubles action, quarter-final action. On court number 1, unforced error from Aarti. And yet another opportunity here for the young Gujarat pair, Shannon and Dipti. Can they script a turnaround? Well, that would mean that the lead increases to 16-12 for the Kerala pair. So, the women's doubles quarterfinals, up to now, things going the way of Kerala. But what the Gujarat pair has done well also, Sunita, is every time they have got an opportunity, they have tried to make a match of it. Maybe less experience. बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस तरह के मुकाबलों में एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, और एक्सपीरियंस के चलते ये एक और अंक अर्जित किया आरती और महरीन की जोड़ी ने, और अंतर को बरकरार रखा। जो एक अंक मिला था गुजरात को, उसके साथ ही दूसरा अंक लिया केरल की जोड़ी ने। फिलहाल ये देखिए किस तरह से पहला सेट जीता था, और पहले सेट का स्कोर रहा था 21-14। दूसरे गेम में भी केरल की टीम बढ़त बनाए हुए है, और ये बाएं दाएं हाथ का अच्छा कॉम्बिनेशन। और इस बार रीजा पहुंच नहीं पाई, एंटिसिपेट नहीं कर पाई, और 17-14। फिलहाल सर्विस शनन और दीप्ति की जोड़ी की, यानी कि गुजरात की। शनन की सर्विस, और आउट। सही जजमेंट, अच्छी एंटिसिपेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन सुनील और रीजा के बीच का सराहना करनी होगी। और इस तरह से धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही है केरल की टीम। 18-14 स्कोर।
लेकिन इस बार रीजा का अच्छा प्रयास, डाइव किया। और ये देखिए कि किस तरह से, जैसे आपने कहा था, दे ट्राई टू बाय टाइम, क्योंकि जब भी इस तरह की मोमेंट होती है तो उसको एनकैश करने के लिए एक सलाह परामर्श की ज़रूरत होती है, तो इससे से खिलाड़ी जाते हैं और वापसी होती है। उसी बीच कई बार हम देखते हैं खेल की जो मोमेंटम होता है उसमें टैक्टिक होती है, उसमें चेंज देखने को मिलता है। Well within the rules, whatever they are doing. So really cannot, because it's such a game which takes so much of your toll. Badminton is such fast pace, be it singles, doubles more so. And the Kerala pair now well on course. Superb rally. That was a very good rally. Finally, it is Sara and Marine who get the point. Aarti and Marine rather. And they are nearly now at the verge of the Gujarat pair. If at all they need to come back quickly, that's not to be. And the Kerala pair on match point. Aarti and Marine combining well, winning the opening game 21-14, and has got as many as 5 match point opportunities. Well, they didn't require 5. In the very first instance, they have finished it to win 21-15, winning this match 21-14, 21-15. Comprehensive victory for the Kerala women's doubles pair of Aarti Sara Sunil and Marine Riza. There's Aarti, and what a way to finish off proceedings. Marine attacking, and then Aarti following it up very well. So Aarti Sara Sunil and Marine Riza winning against the young Gujarat pair of Shannon Christian and Dipti Kuti by the margin of 21-14 and 21-15. So really, what a fine match it was. But I must say, Sunita, the pair from Gujarat may not be that experienced, but they gave a good account of themselves. They will learn a lot from this match. बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी बीच इस मैच के कुछ महत्वपूर्ण अंश, हाइलाइट्स देखिए किस तरह से केरल की टीम ने ये मैच जीता था, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली थी केरल के पेयर में, महरीन और आरती के बीच। हालांकि अच्छे स्ट्रोक्स देखने को मिले गुजरात की तरफ से, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में जो कमी थी वो खटकी जरूर। और इस प्रकार ये मैच जो है ये केरल की टीम ने जीता था, और स्कोर रहा था 21-14, 21-15 का। और कुल मिलाकर दूसरे गेम में डेफिनेटली कुछ बेहतर स्ट्रोक्स देखने को मिले, अच्छा कॉम्बिनेशन और एंगुलर शॉट्स निकाले थे उन्होंने। ये रीजा बाएं हाथ के खिलाड़ी जिन्हें आज अच्छा खेल खेला, अच्छे मैचेस खेले। देखिए कितनी लंबी रैली देखने को मिली थी। डबल्स में इस तरह की रैली बहुत कम देखने को मिलती है, और ये अंत हुआ था इस रैली का केरल के फेवर में। बाएं हाथ के खिलाड़ी ने डाइव किया था, अच्छा प्रयास था यहाँ रीजा का। शॉट सेंटर लाइन से डाउन द लाइन स्मैश था ये सुनील का। That's how it ended in victory for the Kerala pair.
The next match coming up on court number 1 would be another women's doubles quarterfinals, the Karnataka pair of Shikha Gautam and Ashwini Bhatt. And they will be up against Simran Singhi and Ritika Thakkar of Maharashtra. And change in commentary here. Joining Sunita Singh for commentary here for this match would be Neeti Rawat, and the match about to get underway in a short while. विमेन डबल्स का ये मुकाबला एक मुकाबला हो चुका है और ये मुकाबला है शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट की जोड़ी का सामना होगा सिमरन सिंह और रितिका ठाकुर के साथ कोर्ट नंबर 1 पे। ये मैच नंबर 6 मैच नंबर Match on court number 2, women doubles quarterfinal. Kavya Gupta, Kushi Gupta, Delhi. R. Arunwala, V. Hira, Tamil Nadu. मैच नंबर 7 और इससे पहले मुकाबले में सामना हुआ था जिनन क्रिश्चियन जो कि गुजरात की जोड़ी थी दीप्ति क्यूटी और उनका सामना था केरला से महरीन रीजा और आराती सारा सुनील की जोड़ी के साथ में। और इस मुकाबले में कर्नाटका वर्सेस महाराष्ट्र विमेन डबल्स का ये मुकाबला है कर्नाटका वर्सेस महाराष्ट्र। शिखा गौतम अश्विनी भट्ट जो कि कर्नाटका की तरफ से होंगी
और महाराष्ट्र की टीम में है सिमरन सिंघी और रितिका ठाकेर। Ladies and gentlemen, on my right, Shikha Gautam and Ashwini Bhatke. मुकाबले की शुरुआत यहाँ पर विमेंस डबल्स का ये मैच है। And on my left, Simran Singhi and Ritika Thakur, Maharashtra. Shikha Gautam to serve to Simran Singhi, Ritika Thakur, sorry. Love all, play. पर्पल एंड ब्लैक जर्सी कॉम्बिनेशन में है कर्नाटका, जबकि स्काई ब्लू कॉम्बिनेशन में है महाराष्ट्र की जोड़ी। और इस चैंपियनशिप के दौरान सेकंड सीड है सिमरन सिंघी और रितिका ठाकुर। मुकाबले की शुरुआत डबल्स का ये मुकाबला है और पहला पॉइंट जो है मिला है महाराष्ट्र को। यहाँ पे थोड़ा सा और इंतज़ार है क्योंकि अभी चेयर अंपायर का कॉल नहीं आया है। मुकाबले की शुरुआत थोड़े से और जो है ऑफिशियल चेकिंग वहाँ पर चल रही है। और शिखा गौतम और अश्वनी भट्ट जो कि कर्नाटका से हैं, एक ऑफिशियल कॉल का इंतज़ार है इन विमेन डबल्स खिलाड़ियों को। इस समय आपकी स्क्रीन पर महाराष्ट्र की सिमरन सिंघी और रितिका ठाकुर। To love, play. तो मुकाबले की शुरुआत और ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट। 3 love. मुकाबले की फर्स्ट फेज में ही 3-0 की लीड हासिल कर ली है इस समय सिमरन और रितिका की जोड़ी ने। अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाई है शिखा और अश्वनी। ये पॉइंट भी आ सकता था लेकिन थोड़ा सा वीक रिटर्न था, जिसके चलते ये पॉइंट अपना अकाउंट ओपन किया है शिखा और अश्वनी ने। 3-1 का स्कोर, 2 पॉइंट्स के एडवांटेज और ये इनिशियल स्टेज इस मुकाबले की। सर्विस के लिए इस समय काफी लंबी रैली है और देखना होगा इस रैली को कौन कन्वर्ट करने में कामयाबी हासिल करेगा। सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है और इसी के साथ इस रैली का पॉइंट अपने नाम किया है शिखा और अश्वनी ने। एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में, लगातार अटैक बनाने की कोशिश की। 3-3 की बराबरी। ये एक अच्छी प्लेसमेंट थी, अच्छा टैक्टिकल प्ले था। उन्होंने सिर्फ टैप किया, जिसका रिटर्न करने में कामयाबी नहीं मिली है। बैक टू बैक पॉइंट स्कोर किया है इस समय
महाराष्ट्र की टीम में जो फ्रंट कोर्ट संभाल रही हैं रितिका ठाकर, और बैक कोर्ट में इस समय है सिमरन सिंघी। रितिका ठाकर फ्रंट कोर्ट में और बैक कोर्ट में सिमरन सिंघी। सर्विस की थी रितिका ने, ये एक अच्छा हाफ स्मैश लगाने की कोशिश में कामयाबी मिली है अश्वनी भट्ट को। सर्विस के लिए शिखा गौतम इस समय सर्विस के लिए। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी की है, लगातार उन्होंने फीड किया है रितिका के ऊपर। दोनों ही शटलर्स जो हैं, चाहे वो शिखा हो या फिर अश्वनी, वो लगातार रितिका को खिलाते रहे और आखिरकार ये पॉइंट लेने में कामयाबी हासिल हुई है। 5-5 की बराबरी, पहला सेट इस समय प्रगति में। सर्विस के लिए एक बार फिर से शिखा। ड्रॉप डालने की कोशिश थी लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाई उसको पॉइंट में। एक प्रयास अच्छा था उनका वहां पर सिमरन सिंघी का, लेकिन पॉइंट मिला है शिखा और अश्वनी की जोड़ी को। Service over. 6 all. डीप अटैक किया था लेकिन शटल सीधा नेट में, और ये पॉइंट भी मिला है महाराष्ट्र को। 6 ऑल। Play. Service over. 7-6. अपनी स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल किया है वहां पर अश्विनी भट्ट ने। रिटर्न के लिए कोई चांस नहीं था रितिका के पास। फिलहाल इस समय सर्विस लाइन पे अश्विनी भट्ट। अपने शोल्डर स्ट्रेंथ को पूरी तरह से इस्तेमाल करती हुई 8-6. Play. अश्विनी भट्ट लगातार ये दूसरा सर्व। स्ट्रेट लाइन अटेम्प्ट था, उसके बाद शिखा ने जो है सीधा सिमरन सिंघी पे अटैक किया और उस अटैक को रिप्लाई करना, रिटर्न करना काफ़ी मुश्किल था। सिमरन अपनी पोजीशन पे नहीं थी जिसका नुकसान उन्हें हुआ। 9-6, 3 पॉइंट्स एडवांटेज इस समय है। महाराष्ट्र के पास जो एडवांटेज था उसे ऑलरेडी स्ट्रेच करने लगी हैं। अब यहाँ पे कर्नाटका की, क्षमा कीजिए, कि एडवांटेज को, अपनी लीड को बढ़ा लिया है। 10-6 का स्कोर है, 4 पॉइंट्स की लीड पर इस समय शिखा और अश्विनी। क्रॉस कोर्ट स्मैश
11-6 का स्कोर, 5 पॉइंट से लीड पर इस समय कर्नाटका। अश्विनी ने क्रॉस कोर्ट अटैक किया, कृतिका सिमरन सिंह ही वहां पे रिप्लाई नहीं कर पाई थी। पहला टाइम आउट इस सेट का और कर्नाटका चाहेगा कि वो अपनी इस लीड को मेंटेन करके रखे, कंसिस्टेंसी बनाए रखे। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, विमेंस डबल्स का क्वार्टर फाइनल। ये चौथा क्वार्टर फाइनल है और यहाँ पर जीत पहुंचाएगी आपको सेमीफाइनल्स में। टॉस तो कुछ इस तरह से किया था उन्होंने ताकि वो अपने लिए ओपनिंग क्रिएट कर पाए, लेकिन उसी को अपने एडवांटेज बना लिया अश्विनी ने और ये एक और पॉइंट उनके खाते में। अश्विनी लगातार सर्विस लाइन पर हैं। कोर्ट के साइड लाइंस को यूज किया है इस बार शिखा गौतम ने। पहले उन्होंने लिफ्ट किया, उसके बाद में ये देखिए किस तरह से ये राइट था और डबल्स में ये लॉबी काउंटेड है, इसीलिए पॉइंट मिलेगा कर्नाटका को। लगातार अंकों में इजाफा करती हुई इस समय कर्नाटका की ये जोड़ी शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट। बैकहैंड से रिटर्न करने की कोशिश की थी लेकिन सफलता नहीं मिली है। सर्विस के लिए रितिका ठाकर। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में। पहले शिखा ने रिसीव किया, उसके बाद में उन्होंने जगह बनाई कि अश्विनी उस पर अटेम्प्ट ले सके। और डबल्स का खेल ही है कोऑर्डिनेशन का, कॉम्बिनेशन का और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग का, और ये साफ दिखाया है इस मुकाबले में अश्विनी और शिखा ने। सर्विस पे ही बढ़िया रिटर्न। सिमरन काफी इफेक्टिव सर्विस थी। सिमरन एक बार फिर सर्विस के लिए। सर्विस अच्छी थी लेकिन तैयार नहीं थी वो बैककोर्ट में उस जवाब के लिए, और उसी का नुकसान इस समय हुआ है। एक बार फिर से महाराष्ट्र को 17-9 कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए, लेकिन ये एक बढ़िया स्मैश, बढ़िया करारा जवाब है। ये कुछ ऐसे ही जवाब लगातार आने चाहिए। ये देखिए किस तरह से उन्होंने इस रिटर्न का रिप्लाई किया और ये पॉइंट भी अपने नाम किया। 17-10। इस रैली में कंट्रोल बनाने की कोशिश है इस समय।
के सामने से ये अटेम्प्ट लिया। रेडी ऐसा लगता है कि तैयार नहीं थी उस एक्शन के लिए। काफ़ी लंबी रैली थी, जिस रैली में काफ़ी ज़्यादा टॉसेस एक्सचेंज हुए, नेट पे प्ले हुआ और उसके बाद ये पॉइंट शिखा और अश्विनी के लिए। अब उन्हें सिर्फ 3 पॉइंट्स चाहिए इस मैच में पहले सेट को जीतने के लिए, जबकि सिमरन और रितिका के लिए अभी चुनौती बड़ी है क्योंकि 8 पॉइंट से पिछड़ रही हैं वो इस फर्स्ट सेट में। क्वार्टर फाइनल मुकाबला है ये विमेंस डबल्स का। एक तरफ महाराष्ट्र, दूसरी तरफ कर्नाटका। पर्पल ब्लैक में है कर्नाटका की टीम और स्काई ब्लू में है महाराष्ट्र। राइट है ये, काफी डीप एंगल पर उन्होंने क्रॉस किया था। ये देखिए पहले लिफ्ट किया, उसके बाद उन्होंने क्रॉस कोर्ट प्लेसमेंट। पहले शिखा ने ये जज कर लिया था कि वो किस तरह से ये शिखा ने क्रॉस कोर्ट यहाँ पे ये रिप्लाई किया है, सीधा उसको रिसीव करने Scenic locale which has provided some हकेर को। of the high voltage athletics action here at the 36th National Games which has been held at the IIT Gandhinagar. सेट पॉइंट 2012 का स्कोर। रिसेप्शन पे इस समय कर्नाटका। नेट प्ले की कोशिश थी लेकिन थोड़ा सा फंबल किया है वहां पर अश्विनी भट्ट ने। ये आसान हो सकता था क्योंकि दोनों के दोनों विपक्षी जो है वो ऑफ पोजीशन थे, आप इसको यूटिलाइज कर सकती थी, लेकिन ये नुकसान इस समय महाराष्ट्र के कर्नाटका के लिए। सिर्फ 1 पॉइंट के लिए उन्होंने 2 पॉइंट गवा दिए हैं, ये 1 पॉइंट चाहिए उन्हें। और आखिरकार ये 1 पॉइंट जिसके लिए वो स्ट्रगल करती नजर आई वो उन्हें मिल ही गया। 21-13 के स्कोर के साथ इस पहले सेट को जीत लिया है कर्नाटका ने। शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट शुरुआत से ही डोमिनेट किया। टॉस और ये क्रॉस नहीं हुआ। महाराष्ट्र की ये जोड़ी सिमरन सिंघी और रितिका ठाकर, पहला सेट उन्होंने गवा दिया है 21-13 से और इस सेकंड सेट की जीत जरूरी है मुकाबले में बने रहने के लिए। थोड़ा सा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में जरूर नजर आया और उन्होंने पिछले कुछ लास्ट पॉइंट्स में वापसी की कोशिश भी की। स्ट्रगल करती नजर आई वो शिखा और अश्विनी के खिलाफ, लेकिन अभी भी मौका है उनके सामने और इस सेकंड सेट को अगर जीतते हैं तो आपको मौका मिलेगा डिसाइडिंग सेट तक जाने का। तो अभी भी जीत के रास्ते खुले हैं आपके लिए। और टीम के कोच यहाँ पर लगातार समझा रहे होंगे अपनी टीम को कि आप विपक्षी के कोर्ट को यूटिलाइज कीजिए, थोड़े से उनके फुटवर्क को रीड कीजिए, उनके मोमेंट्स को रीड कीजिए ताकि आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का मौका मिले। मौके आपको मिलेंगे नहीं, मौके आपको बनाने पड़ेंगे।
शिखा इस समय। शिखा गौतम सर्विस की शुरुआत करेंगी और फ्रंट कोर्ट में है, जबकि बैक कोर्ट संभालने की जिम्मेदारी जो है अभी अश्विनी भट्ट के पास है। लेकिन कमाल की अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में और कमाल के स्विच ओवर्स देखने को मिले हैं। जिस तरह से कोर्ट कवरेज उन्होंने दिखाया है फर्स्ट सेट में, उसी का नतीजा कि उन्हें जीत हासिल हुई। लगातार अटैक होता रहा शिखा गौतम का और वो रिप्लाई भी अच्छा करती रही। वहां पे संभाला बहुत अच्छा था सिंघी ने, सिमरन सिंघी ने, लेकिन आखिरकार एक छोटी सी गलती, थोड़ा सा पोजीशन चेंज की और जिसका नुकसान। एक लंबी रैली है ये। ये अटेम्प्ट अच्छा था, ये प्रयास अच्छा था। उन्होंने नेट प्ले की कोशिश की थी, नेटिंग करना चाहती थी। ये यहाँ पर ये चांस लग सकता था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में कमी और पॉइंट मिला है इस समय कर्नाटका को। 2-0 के एडवांटेज। कुछ ऐसी ही शुरुआत की थी फर्स्ट सेट में भी कर्नाटका ने, यानी शिखा और अश्विनी की जोड़ी ने फर्स्ट सेट में भी ऐसी ही ओपनिंग की थी और इस सेकंड सेट में भी वैसी ही शुरुआत की है। सर्विस के लिए सिमरन। आउट का इशारा और ये पॉइंट भी महाराष्ट्र के लिए, ये पॉइंट कर्नाटका के लिए। काफी पुअर कह सकते हैं ये जो रिटर्न बैकहैंड से उन्होंने लगाने की कोशिश की थी। बिल्कुल भी रेडी नहीं थी वो ऐसे इस रिटर्न के लिए। रितिका सर्विस पे। गैप को रीड किया, ओपोनेंट्स के बीच में जो गैप था उसको स्टडी किया, एक अलर्टनेस दिखाई और उस स्पेस को यूज करके शिखा ने ये पॉइंट अपने नाम किया है। सर्विस के लिए शिखा गौतम। Beautiful shot that time. Ritika Thakur.
अश्वनी भट्ट के पास मूवमेंट का कोई मौका नहीं था। सर्विस के लिए सिमरन। बिल्कुल फ्लैट अटेम्प्ट था ये। आप नेट के इतने नजदीक हैं और इस तरह से अटेम्प्ट लेंगे तो कुछ ऐसे ही नतीजे सामने आएंगे। कंट्रोल और बैलेंस बनाए रखना होगा और महाराष्ट्र पूरी कोशिश करेंगे कि इस सेट को जीतकर इस मुकाबले को तीसरे सेट की ओर लेकर जाएं। ये अच्छी टैक्टिक्स है कि वो इनवाइट कर रहे हैं ओपोनेंट को गलती करने के लिए, वो ऐसे मौके बना रहे हैं और शायद उन्होंने जो उनके कोच ने जो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इस सेट की शुरुआत से पहले, अब ऐसा लगता है कि उनका फायदा होने लगा है महाराष्ट्र को। सिमरन और रितिका इस समय 2 पॉइंट की लीड पर हैं और ये एक अच्छा मौका है इस लीड को बनाने का। ऐसी गलती मत कीजिए, सर्विस के दौरान आप ऐसा चांस नहीं ले सकते क्योंकि अब आपके पास मौका है अपने फर्स्ट अटैक को पूरी तरह से यूज करने का। ये छोटी छोटी गलतियां काफी बड़े नुकसान में प्रूफ हो सकती हैं। इस रैली की सबसे खूबसूरत चीज ये होगी कि दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग जो है, वो कोऑर्डिनेशन, वो कॉम्बिनेशन अब साफ नजर आने लगा है, जो कहीं ज्यादा इंप्रूव हुआ है इस सेकंड सेट में। सिमरन और रितिका किस तरह से स्विच ओवर्स किए, किस तरह से पोजीशन चेंज की। इनिशियली वो फ्रंट कोर्ट संभाल रही थी, बैक फुट पे गई, बैक कोर्ट संभाला, उसके बाद आगे स्विच किया। कुछ ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है अगर आपको इस सेट को जीतना है। रितिका और सिमरन। सर्विस पे लगातार वही मिस्टेक बार बार हो रही है। आउट और 7 ऑल। आप मौका मत दीजिए शिखा और अश्विनी को बराबरी पर आने का, क्योंकि मुश्किलें आपकी बढ़ जाएंगी। उनके पास एडवांटेज है फर्स्ट सेट की जीत का। रितिका का कोई कंट्रोल नहीं था उस रिटर्न पे, उस जवाब पे, और उसका नुकसान एक बार फिर। पहले तो आपने लीड गंवा दी है और अब विपक्षी 1 पॉइंट से आगे है। लकी पॉइंट इस बार शिखा और अश्विनी के लिए। 9-7 का स्कोर। ये एक टेंशन की बात हो सकती है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि उनके पास लीड थी, उस लीड को बरकरार रखना चाहिए था। लेकिन अब जो है कर्नाटका वापस लीड पर आ चुका है और वो इस लीड को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। रितिका सिमरन इस समय रिसेप्शन पे, सर्विस के लिए शिखा। ये प्रेशर है, ये दबाव है जो बनाया है इस समय कर्नाटका ने महाराष्ट्र के ऊपर। सर्विस में भी पॉइंट निकालना और लगातार 3 पॉइंट्स उन्होंने लिए हैं। ये सर्विस ब्रेक करना बहुत जरूरी होगा।
काफी डीप फोरहैंड पे थी ये शटल। और एक बार फिर से शिखा और अश्विनी जो है 4 पॉइंट की लीड पर आ गई हैं। सिमरन सिंघी वहां पे रिटर्न करने की कोशिश की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। यहाँ पे कोच जरूर बताने की कोशिश करेंगे अपने प्लेयर्स को कि रोक के रखिए। Court 1, 20 seconds. Court 1, 20 seconds. शिखा और अश्विनी चाहेंगे कि इस सेट को जीतकर इस मुकाबले में 2-0 से जीत हासिल करके सेमीफाइनल्स में अपनी पोजीशन पक्की कर लें। और सिमरन और रितिका के पास में ये आखिरी मौका है, डू और डाई, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 का गेम और पहला सेट आप ऑलरेडी गवा चुके हो। ऐसा लगता था कि जब आप बैक टू बैक पॉइंट्स ले रहे हैं तो टाइम आउट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ओपोनेंट के रिदम को ब्रेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। रितिका का वो वीक रिटर्न और ये पॉइंट भी शिखा और अश्विनी के अकाउंट में। 5 पॉइंट से अब लीड पर हैं वो इस दूसरे सेट में। काफी ऊपर से पकड़ने की कोशिश की थी उन्होंने, अश्विनी ने। शायद ऐसा लगता है शटल चेंज, जी हाँ, शटल चेंज करने का मौका आ गया है। शटल चेंज कर ली है खिलाड़ियों ने और 12-8 का स्कोर है। शिखा अश्विनी, यहाँ पर रितिका और सिमरन। सिमरन इस समय सर्विस लाइन पर हैं जबकि पीछे यानी बैक कोर्ट संभाल रही हैं रितिका। Next match on court 2, men doubles quarterfinal. HV Nitin Vaibhav Karnataka. शिखा ने काफी डीप हैंड पे था उनके ये रिटर्न, तो मुश्किल काफी थी इसका रिप्लाई करना। सर्विस पर ही वो कन्वर्ट करना चाहती थी अश्विनी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है और अब फिर से डिफरेंस थोड़ा कम हो गया है। सिमरन सर्विस के लिए। लगातार अटैक हुआ, पहले अश्विनी का, फिर उसके बाद शिखा का।